Yes, sir. Are we on? Yeah, we are on. Oh. Okay, let's Hello. go. What's up? Hello, everyone. Namaste, salam, sat sri akal, अस्सलाम वालेकुम. And और एक पुस्तक रहता है क्या हाल चाल? वाहेगुरु. अस्सलाम वालेकुम. सत श्री अकाल बोल दिया ना भाई. You said सत श्री अकाल. You addressed each and every community. Yes. अभी तो ऐसा फिर लंबा हो भाई जाएगा. सबसे फिर पहले लंबा हो नमस्कार जाएगा. बोला ही नहीं. नमस्ते बोला. नमस्ते बोला क्या? नमस्कार. Fucker. Namaste is the Indian word. Why are you? आज चल ज्ञान Why are you मध्ये चालू dividing it into Hindi and हाँ Marathi? ज्ञान then मध्ये again? भाई चालू कर चल. हाँ. नमस्कार बोला नहीं बोलते. Okay. Fuck, I kept this bottle for the time we started. पहले खोल दिया था क्या? नहीं मैंने अभी नहीं, खोला. अच्छा, चूतिया ने मैंने पहले खोला. Oh, is it censored? We'll put that part in our what do you call it? Members only section. मॉम डैड के साथ मत देखो. वैसे भी किससे ने एक पॉडकास्ट members only section में रखा है. No, it's not in members only section. It's just an unlisted podcast. You can just watch. हाँ, it. निकाल दिया ना, निकाल दिया. My angle is here. So guys, we have changed the whole angle. The whole setup is grown up now. You can see there's a grown up guy with us today. He's just not a guest. He is the Host. co-host. तो host. The host is Kunal. Here again we are back with Kunal. Kunal 3 महीने से गायब था. He was on a financial break. Financial leave. Financial leave. कहाँ था भाई तू? था. Kunal was on a financial leave. He was mentally trying to Gather his chi. Finance. yeah Mentally finance कर रहा था. mentally finance के ऊपर ध्यान दे रहा था because finance with Sharan के उसने बहुत सारे एपिसोड देख लिए तो he was he got a life reflection of Yeah. what he's doing with his life and everything and now he is up with a very good portfolio and he's back For the into first time today podcast here. मुझे आज पता चला कि कुणाल को पिज्जा वाला बनना था. अब मैंने कुछ सीक्रेट्स बताए मैंने सागर को. Yeah. I don't know the secrets. हाँ नहीं पता वो थोड़ा बोला था. Okay. और तो बोलो. So let's address the हाथी in the room. Address the elephant in the room. What is the elephant? What is it actually? एलिफेंट तो मेरे सामने बैठा है. सो या गाइस आप लोग ने देखा होगा प्रवीण ब्लू द दिल से- फक अप. तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का. तहे दिल से शुक्रिया मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए. आई एम वेरी हैप्पी. फॉर द पीपल हु डोंट नो, बिफोर माय इंस्टाग्राम ब्लू अप, it was Kunal's Instagram that blew up. Yes. And that was the day when we first thought of taking Kunal into podcast ki chal अपन साथ में करते podcast. And now that my Instagram is blowing up, So the I whole want you guys point- to know, everybody to know ki this podcast was there even before we all blew up. Not we, the two of us. This guy is still like in 500 followers. Like, it doesn't matter. He's still doing something. Little kid. Okay. So, Crude Chat existed even before we started doing things on Instagram. And basically, Crude Chat is all about friends talking. Like Rishi, one of my friends, he asked me, what is Crude Chat all about? So, I said कि Crude Chat का idea came up with a thought कि एक, in an express train, when just 2 लोग या 4 लोग एक दूसरे के साथ बात करते होते हैं, तो वो 4 लोगों के बाजू में बैठे हुए 3 लोग है ना ऑडियंस बन जाते हैं और वो 4 लोगों के बीच के कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते हैं. Right. What is that? ये है क्या भाई? Beautiful. Why can't that kind of conversation be telecasted or recorded and shown it to other people also, right? And those conversations are actually real. It's not that दूसरे conversations real नहीं होते, but that is how we started the thought of Crude Chat, how Crude Chat should go. And it was just an ideal mind का thought कि दोपहर को कुछ है नहीं करने के लिए बातें करते हैं चलो. Because that is how it started, right? I mean, it was nothing else apart from that. And we started doing it. Later, there was a fact that came into mind. Like, when you keep doing all these things और उसके बीच में अपने को एक thought आता है कि अपने को क्रूड चाट बंद है, अपने को अपना चाट शो बंद नहीं करना है, होने नहीं देना है, बंद नहीं होने देना है. तो एक फैक्ट आया भाई सामने कि टिपिकल पॉडकास्ट चैनल लास्ट 7 episodes. 7 की 10. 7 episodes. 7, right? 7 or 10 episodes something. We crossed 10. हाँ right. And we stopped there. क्यों? We crossed nearly 11 episodes. This is probably the 12th episode, I guess. क्यों रुक गए थे? It's just financial crisis और financial vacation में क्रिश बोल रहा हूँ. Financial vacation में कुणाल चला गया था. And then हमारे पास system failures थे हमारी कभी audio delete हो जाती थी. कभी वीडियो ही नहीं आती थी, रील्स एडिट ही नहीं होते थे हमारे. तो we were just into all those things, struggling and coping up with the whole organizational failures and struggles.
So now that we are managing things better with Kunal and Sagar in the room, सागर नाटे. with behind the camera we have Rishi here. With Rishi there will be a team alongside definitely. And this whole setup, I hope you guys can rate this setup on a scale of 1 to 10. If this is good, like we can definitely continue with this setup, or else we'll shift to some others. Unfortunately or unfortunately, Sagar. Okay, this when you might or might not change depends on what the audience thinks. Okay, fine. भाई. So yeah, let's address the elephant in the room, and the elephant in the room is here, Praveen Aswal, sitting in front of you. What do you guys want to ask me? Just tell me. Yeah. सो बेसिकली यहाँ पे क्या टॉपिक है आज का? तो टॉपिक ये है कि ये भोसड़ी का बेंच देख, ये बेंच एंकर बन जाता है, इससे बाद से मुंह बंद करो. देखो मैं ऐसे ही बात Basically, करता हूँ. guys, देवी और संजनो. हाँ, देवी और सज्जनों, द होल टॉपिक अबाउट लाइक हम लोग जो बोलने वाले हैं ये पॉडकास्ट के अंदर, वो ये है कि बिफोर प्रवीण बिकमिंग प्रवीण, लाइक ही वाज ऑलवेज प्रवीण, बट फिर भी लाइक ये अभी जो तेरे फॉलोअर्स कितने अभी? I don't know, 45 something. 45 समथिंग वी कैन से 45, ठीक है. सो यहाँ पे पहुँचने के पहले क्या था, कैसे था, व्हाट वाज ही गोइंग थ्रू, एवरीथिंग, लाइक वी वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू. See, first thing I'll tell you. लाइक आज जो लोग जाके आगे देख रहे हैं कि हाँ प्रवीण तू ऐसा है, तू वैसा है, लाइक द वाव पर्सनालिटी ऑफ योर्स, बट इसके पहले तू क्या चीज़ों में से गया, हम लोग को सब जानना है. Okay, you guys, जैसे कि Nice तुम लोगों को पता नहीं है. Start These from guys childhood. know a lot of things. Kunal knows more than what Sagar knows, but still he knows a lot of things still. यस, So it's not about the childhood thing. I want to start with how it is right now. लाइक हाउ डिड यू रीच हियर, हम लोग को ये सुनना. Last 8 months probably. यस, 8 months. Probably. वो बहुत स्किप हो जाएगा. स्टार्टिंग से बता हम लोग को. First, I'll let me go. अभी से पीछे जाऊंगा मैं, like 2024, हाँ. and उसके बाद पीछे जाते हैं, ठीक है? And then I'll skip to some other part, and then I'll start from the start, and then I'll go back to the part where Whatever I stopped. you That's feel what I like. want to Whatever do. you feel like. So, you know, at this point of time, whatever I used to think back then, कि whenever I used to see an Instagram, like Kunal's Instagram was blowing up like crazy. और जैसे कुणाल के साथ मैं एक रील कोलैब में डालता था ना, तो ऐसे सी यार वीडियो को डाले 10 मिनट नहीं हुए 1000 क्रॉस हो गया. व्यूज आज 1000 व्यूज क्रॉस हो गए. एंड देन दिस थिंग, लाइक यू नो, व्हेन यू आर ऑन इंस्टाग्राम, डेफिनेटली ऑल दीज थिंग्स दे आर गोइंग टू मैटर यू टू एन एक्सटेंट. येस, उसके आगे तुम अपने इम्पल्सेस को और अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो, और तब तुम वो सब सोचना बंद करते हो. बट देन येस, दीज थिंग्स दे रियली मैटर. तो मैं सोचता था यार इंस्टाग्राम दिखता कैसे होगा, ये इंस्टाग्राम जो इन्फ्लुएंसर्स का होता है, ये इंस्टाग्राम में क्या हलचल होती होगी. And even I don't know if you guys are curious to know about that thing. That is what I was curious all about. I mean, I was curious about it. I don't know why people are not so happy about the broadcast channel. मेरे को जिस दिन ब्रॉडकास्ट चैनल मिला, I know. मैंने स्टोरी डाली भाई, क्योंकि मैं बहुत खुश हो गया. ऑब्वियसली. Because it's not just that the broadcast channel matters to me. I'm not just making it up, guys. I'll tell you one thing. मेरे को ब्रॉडकास्ट चैनल चाहिए था क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना चाहता हूँ. From the past 10 days, I'm not able to communicate with all my people is because I'm trying to cope up with the whole thing कि मेरे को किस तरीके से मेरे ट्रेनिंग्स मैनेज करने हैं, किस तरीके से मुझे इंस्टाग्राम को मैनेज करना है, किस तरीके से मेरे कंटेंट को मैनेज करना है, और कितना कौन सी चीज़ों को मैं यूटिलाइज करूँ कि मैं अपने लोगों के साथ और कनेक्ट कर पाऊँ. दैट इज द थिंग आई एम फॉर कोपिंग योर अप विद. इन्फॉर्मेशन पीपल, ये बंदा बहुत स्पेसिफिक लोगों को ट्रेनिंग देता है एंड ही ट्रैवल्स अलॉट. लाइक वो बंदा सुबह रोज 5 बजे उठता है. मैं क्यों ये तुम लोग को आके बता रहा हूँ, बिकॉज जो हम लोग को लगता है कि इन्फ्लुएंस की जिंदगी ऐसी रहती है वैसी रहती जो है. इन्फ्लुएंसर. Yeah, obviously, yeah. Fuck एक yes. ट्रेनर ये को इन्फ्लुएंसर बंदा- बना दिया भाई इसने. Fuck yes. लाइक वी बोथ गेट अप एट द सेम टाइम. तू कितने बजे उठता है? नहीं, मत पूछ. Not. वी बोथ गेट अप एट द Kunal is सेम on a टाइम. financial vacation. उसका कोई He's टेंशन still नहीं. on a vacation. हम लोग रोज सुबह 5 बजे उठते हैं. रोज सुबह 5 बजे उठने के बाद जो पूरा दिन चलने का वाला रहता है, जो भी रहता है, ये बंदा सुबह 5 बजे उठने के बाद ऑलमोस्ट लाइक नवी मुंबई टू मुंबई, मुंबई टू नवी मुंबई. ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को सिखाता है, बट ये बंदा अपनी ट्रेनिंग खुद मैनेज करता है, खुद के वीडियोस खुद से एडिट करता है, वो लोगों को सिखाता है. एंड हार्डली यू गेट स्लीप ऑफ कितना, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा. No, I try to complete my sleep, bhai. It's not that I don't get sleep. Some of the day it's झूठ बोल biased. रहा है. 4 घंटा, No, no, I'll 4.5 tell you. घंटा सोता है ये. It's not every day, bhai. It's not every day. Like I try to manage my sleep. फंक्शनल इतना इन द I know. ऑन द बेसिस ऑफ ये 4 घंटे का स्लीप, इट्स नॉट पॉसिबल. Like today I'm so energetic and so fresh because क्योंकि तू आज अच्छे से सोया. बहुत अच्छी नींद मिली. Yesterday I'll tell you, like I'll literally tell you guys, जब भी मैं घर पहुंचता हूँ, मैं सिर्फ बेड पे गिर जाता हूँ. बस. That's what I do. सिस्टम शट डाउन हो जाता है. Yeah. So ये एक चीज़ है, मतलब वही एक रीज़न है जो मैं वीडियोस के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ. वो थोड़ा सा वही चीज़ प्रॉब्लम हो जाता है. So yeah,
when I started coming up with the broadcast channel thing, मेरे को इतना मजा आया ना, because I know that now I can connect with the audience properly. I'm still not doing it because I'm figuring it out कि मैं कैसे चीजें करूँ. I want to come up with like people. I want you guys to watch this podcast. I want to come up with 6 AM thoughts, 6 AM every morning, और मैं वो 5-10 मिनट के वीडियोस डालना चाहता हूँ. Sweet. For everyone to know कि भैंचो 6 बजे उठो, और तुम वो 6 बजे उठो मत, 7 बजे उठो, जब भी उठो. You need to see struggles of life. You need to see what I think about myself and my routine. तो तुम अगर वो रिलेट करते हो तो शायद तुम अपने दिन को अच्छे से निकालोगे. Whatever I've been on Instagram, whatever I've been on social media, whatever I've been doing on social media, how am I learning all these things? और मैं इन चीज़ों को से सीख के क्या चीज़ें कर पा रहा हूँ. I want everybody in my account to be an influencer. Sweet. To do something related to social media. You all can earn something. अगर तुम इसको अपना छोटा सा भी सोर्स ऑफ इनकम बनाते हो ना, शायद तुम अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर लो, शायद तुम अपने नॉर्मल एक्सपेंसेस झेल लो, शायद तुम अपने वेकेशन प्लान कर लो, साल का एक वेकेशन तुम अच्छा निकाल लो. And that is what I want you guys to do. Everybody can do it. You can manage to earn some of the other source of income, and that is what I want to start in my broadcast channel. Later on, everything will be this thing will be divided into my members only section and the broadcast channel. But then yes, right now I'll be doing it because I also want to earn something, bhai. It's not Obviously. that I will do everything for you guys, for each and every person. Like that is the reason I was so happy about the broadcast channel, and I'm glad that Instagram gave me that broadcasting. और इसको छोड़ के जब मैं ना बहुत सारे लोग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल आई नो विथ फेक फॉलोअर्स, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार फेक फॉलोअर्स, और मैं देखता था साला इनके पोस्ट पे लाइक्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो डीप डाउन आई न्यू कि इफ यू गेन ऑल दोज फेक फॉलोअर्स, योर इंस्टाग्राम इज नॉट गोइंग टू लुक एनी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. बेटर स्टे एट 1000. वाई टू गेन 2000 फेक फॉलोअर्स और 3000 फेक फॉलोअर्स पे तुम रहो, और वो 3000 तुमको क्या देने वाला है? इट्स गोइंग टू गिव यू नथिंग. तो द गेम ऑफ नंबर्स इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. That is the reason when Kunal you said कि प्रवीण तू YouTube पे वीडियोस डालना स्टार्ट कर, सेम चीज शायद इसको व्यूज आएंगे. What I said, मेरे को नहीं डालना है. I don't want to do it because I want to build a community on YouTube. Maybe in the future, I have all the videos. I can start posting it at any point of time. But maybe I'll start posting it strategically. Maybe people will start getting some or the other value out of it. And the day when I start adding value on YouTube, we'll start doing it. Yes, simple as that. And I'm very sure तभी YouTube भी बहुत अच्छा बनेगा. And I'm very sure about it. Like I can see it. Like the way you said, I can see it. We can see it. Things are going good. We can see it. Right. I want each and every one of you, each and every one around, seeing us, उनको भी ये सोचना है भाई, अगर हम कर रहे हैं तो तुम भी करोगे. If we can do anything to help you guys, we can definitely do it. Yes. Then मैंने सोचा जो ये मेरे को Instagram देखना है, जो अच्छे चल रहे हैं, जिसके फोटोज पे साला 5-5, 10 हज़ार लाइक्स होते हैं. I want to see उनका Instagram कैसे दिखता होगा. Being an owner, like of the account. Being an owner of what? The account itself. Yeah. खुद का account. Being sole. The handler, whatever. Sole handler of your own account. तो मेरे को देखना था भाई वो कैसे होता होगा, because ये fake followers वाला तो कुछ नहीं चलता भाई. I used to see the transition that happened. It's so crazy. You can't comprehend all those things. You can always imagine, but you can't comprehend. तुम imagine तो कर सकते हो, but it is not what you can actually, understand the whole thing. I still remember तेरा जब मैं call देख आया रहा था वो कि phone hang हो रहा है करके. Yeah, that was the thing. अभी तो recently I'll tell you, my stories are hitting like 10K, 15K views. Stories 15,000 views. Like, that's a crazy thing, भाई. 1% of them are. We used to think कि भाई वो follows होना. But there's a time, I'll tell you. I told Kunal also once. भाई मेरे स्टोरी को 500 व्यूज गए. वो मैं ये फेस पे हुआ. लाइक जब भी मेरे व्यूज 350 जाते हैं, 400 कितना है फॉलोअर्स, कितना सागर आपका? 600 है. उसमें से जब भी 597 और 600 600 डॉट है. डॉट है, ओके फाइन. वो 2-3 कम हो जाते हैं उसके. बट व्हेनेवर आई गेट वैसे लाइक 300 फॉर व्यूज एंड I know. वो एकदम गॉडली फीलिंग आती है. अब इसकी जगह पे जब इस बंदे को 15,000 and 14,000 मिलता है. And it's not about the 15,000. It's just a number that you can see. But the process, the way it goes to 15,000. हाँ, to go there. I'll tell you when I just posted a story. 2 दिन पहले की मेरी स्टोरी थी, बॉडी वाली स्टोरी थी. मैंने ऐसे ही पोस्ट कर दिया उसको. And just I said, क्या तेरी उसमें? हाँ मतलब मोटा तो नहीं लग रहा था रेडी से. अच्छा, इसीलिए उसने यहाँ से ऊपर डाला था और पीछे का डाला था. ठीक है. तो हाँ, तो जब मैंने वो स्टोरी डाली थी इसने उस पॉइंट पे मैंने आई वाज इन माय ट्रेनिंग. मैं ट्रेनिंग पहुंचा था, मैंने वो स्टोरी सोचा डाल देता हूँ करके, एंड आई जस्ट पोस्टेड इट. एंड योहान, ही इज वन ऑफ माय क्लाइंट्स, लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड आल्सो एंड अ क्लाइंट आल्सो. योहान जस्ट एंटर्ड एंड मी एंड योहान हैड अ वेरी शॉर्ट कॉन्वर्सेशन, लाइक 1 मिनट का कॉन्वर्सेशन था. एंड आई सेड चलो लेट्स डू वार्म अप, लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप. और मैंने व्यूज चेक किए, लाइक इट वाज जस्ट नॉट इवन अ मिनट, एंड व्यूज वर 150. नॉट इवन अ मिनट. आफ्टर 5 minutes I checked, it was
300 400 views. Then me and Johan we did one set. मतलब एक सेट के 3 वेरिएशंस हमने कंप्लीट कर दिए, एक वेरिएशन के 3 सेट्स हमने कंप्लीट कर दिए, 3000 views. Beautiful. Like average 10 It was just 10 minutes. Beautiful. minutes, yeah. Beautiful. So that is what gives you the dopamine, you can say. हाँ, it does hit you. and do People more. who think कि why is he talking about this, because and why is he It's not. why a are we flex, guys, stressing? yeah. हाँ, it is It's not a flex. Flex It is नहीं what है. we thought about. हाँ. It's not the money that we thought about. That money doesn't हाँ. motivate me. I'll tell you. Like I'm in collaboration with a certain brands right now, and when I got a first call from a brand, I said, "Bhai, I don't care कि आप किसके साथ associated हो. If I'm associated with you, I'll see what you have. I'll consume it, and I'll then tell my audience ki to do it, to consume it. If मैं consume नहीं कर रहा हूँ वो चीज़ को, तो मैं अपनी audience को भी consume करने नहीं दूंगा. Simple. And I was already using some other fish oils at that point of time, and it had the same proportion of EPA DHA. The brand that I'm consuming right क्या now, होता है UV ये Fit. EPA DHA? बहुत चीज़ें होती है, EPA DHA बहुत. एक बार बोल देना बस, मतलब पता चले. अब होता है कुछ, तो छोड़ना यार. तो EPA DHA नहीं जानता मैं EPA DHA क्या होता है, ठीक है. EPA DHA की जो प्रोफाइल थी वो सेम प्रोफाइल थी उसकी भी, जो पुराना फिश ऑयल में कंज्यूम कर रहा था. आई सेड यस, लेट्स डू इट, एंड वी डिड नॉट इवन नेगोशिएट. थोड़ा सा भी नेगोशिएशन ऐसा हमारा कुछ हुआ नहीं, एंड वी जस्ट मेड अ डील एंड वी स्टार्टेड प्रमोटिंग इट. आई सेड आई डोंट केयर कि मैं 1 वीडियो डालूं, 2 वीडियो डालूं, 4 वीडियो डालूं, मैं 10 वीडियो डालूंगा क्योंकि मैं यूज करता हूँ. As simple नाउ as हियर इट्स नॉट अबाउट प्रमोशन. मेरे को क्या वो एक वीडियो का 50,000 रुपए नहीं देने वाला जब अगर मैं 10 वीडियो डाल दूंगा तो. आई विल डू इट बिकॉज आई वांट टू डू इट. Nice. It's just that. Nice. Like it's not about the first thing. It's not about the money here. I'll consume what I want to give you. I mean, what I want to give you, I'll be consuming the same As thing. simple as that. ठीक है, ये चीज़ थी. Rest everything about the brand promotion thing. When I had the first video with Sagar also related to Kapiva, I am very curious to know and understand how brands work in terms of promotion and all these things. And that is the reason I'll be consuming all these things. उसको छोड़ के I wanted to make a story of it कि I'm going to start consuming a lot of products. I'm going to start collaborating with a lot of people, and then at the end of this, I'll be doing a giveaway or something. I will be looking at the people कि कौन कितना interaction रहा, and I'll just give a random giveaway to all these people related to whatever the products I consume. I won't be telling कि कौन सी चीज़ें कितनी अच्छी है, कौन सी चीज़ें कितनी बुरी निकली मेरे साथ. मैं ये बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें अच्छी निकली. अगर कोई चीज़ें बुरी निकली और मैं उसके लिए स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहा हूँ, तो शायद उसके वजह से मेरे साथ कुछ बुरा हुआ होगा, इसकी वजह से मैं उसको डिसएग्री करूंगा, As simple और एल्स नथिंग लाइक दैट. तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड ट्रांजिशनिंग. मेरे को लगा था भाई स्टोरीज, मेरे फोटोज को, आई हैड अ फोटो, आई स्टिल हैव अ रील जिसको ना मैंने एडिट करके अभी तक ड्रॉप नहीं किया. द सेम स्टबर्न प्रवीण अंथवाल, जिसने वीडियोस बना के डाले, कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग्स पे नहीं डाले, कोई 10 सेकंड 15 सेकंड सोच के नहीं डाला. Yes. उसने 10-15 सेकंड्स के भी डाले, उसने 50 सेकंड्स के डाले, उसने क्रिंज बना के भी डाले, और उसने 1-1 1.5 मिनट के वीडियोस भी डाले. भी डाले. And the videos that blew up वो were एक- all एक- they were कितना आया था? exceptions. वो कितना व्यूज आया? Fuck it. They were exceptions. वो exception ही था मेरे लिए. No assumptions worked in my case कि तुम short videos डालो तो निकलेगा. The exceptions worked. Everything, every law works on assumptions and exceptions. The exceptions worked for me. Obviously. कि तू 1.5 मिनट की वीडियो नहीं चलती वो मत डाल. वो 1.5 मिनट की वीडियो फटी 6 मिलियन व्यूज. हाँ. It has 1,40,000 saves. शोल्डर वाला ना. शोल्डर वाला. और वो वीडियो 1 मिनट की है. Still blowing up. It's crossed 6.3 million views at this point of time. और वो चल ही रही है. I don't know what was different in that. I don't know. Like, let's not discuss about it. But that's how it started triggering. It was not the first video. उसके पहले 3-4 वीडियो निकल रही थी. And I somewhere knew in my mind कि अगर मैं अच्छी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ड्रॉप करूंगा और कोई भी एक वीडियो निकलेगी, तो वो टाइम पे एक वीडियो नहीं निकलेगी, सबको वो टाइम पे एक साथ 5 वीडियोस निकलेंगी. दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक लॉन्ग बैक, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंड. एंड नाउ इट्स जस्ट गोइंग द वे आई थॉट इट शुड. आई एम स्टिल नॉट फोकसिंग ऑन द शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कि आप इसके बदले ये करो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, या रेस्ट्रिक्ट करो अपने वीडियोस को. आई शुड स्टार्ट डूइंग सम ऑफ द अदर थिंग्स. लाइक कुछ कंटेंट वैसा बन सकता है तो मैं बनाऊंगा डेफिनेटली, बट आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट एट ऑल. आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट ग्रोइंग the audience on Instagram. I'm thinking about focusing on the pain points जो लोग फेस करते हैं, जो मैंने फेस किए हैं, और उसको मैंने कैसे ठीक किया है और वो तुम कैसे ठीक कर सकते हो. एंड फॉर्चुनेटली ऑल दोज थिंग्स आर एक्चुअली गेटिंग रिकग्निशन, जो मैंने वो चीज़ें सोच के जब मैं डाल रहा हूँ सारी चीज़ें.
तो this is how this it's is going right now. basically you're trying to say ये algorithm का केला नहीं खाया बिन मतलब कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये आईडी कर लो, वो कर लो, which a lot of like when you're like in the beginning stage you tend to do it. That's because कुणाल उसने कभी दिमाग में रखा ही नहीं कि जो देना है लोगों को वो बस पैसा कमाना। वो समझ रखा है, वो आज भी जब भी जिम में आता है कोई उसको आके सवाल पूछता है कि प्रवीण सर ये कैसे करना है, क्या करना है, वो जेन्युइनली जाके वो लोगों को शेयर करता है। प्रवीण You know सर is about there. about people asking me in the gym. I don't know why people are so obsessed with squats, bench and deadlifts. Bitch boys, powerlifting bitch boys. I'll tell you one thing. Randomly people come to me and they ask me, sir आपकी bench कितनी है? I say, मैंने जब बोला कि मेरी bench है 140 की, मैंने 2 rep मारे हैं. On की off? Like why do you want to know? Like even if somebody is on steroids, if somebody is off steroids, if you're asking them their PR, then तुमको ये क्यों पूछना है कि on या off? And why are you fucking stuck in that loop of squat, bench and deadlifts? क्या तुमको लगता है ये 3 चीज, तुमने squat मार लिया 50 किलो के तुम हो, तुमने squat मार लिया 140 किलो, तो तुमको लगता है तुमको 80 किलो के बंदे को मार दोगे? Exactly. अगर तुम्हारा मेन गोल है स्ट्रेंथ डेवलप करना, तो दीज आर फाउंडेशनल मूवमेंट्स जिसमें तुम फाउंडेशनल स्ट्रेंथ गेन करते हो, नथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट. डेफिनेटली तुम अपनी बॉडी में स्टेबिलिटी लाते हो, तुम लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, तुम अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हो, तुम बॉडी कंडीशनिंग करते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट अगर तुम स्क्वाट अच्छी कर रहे हो तो तुम्हारी स्क्वाट में स्ट्रेंथ बूस्ट हो रही है, तुम डेडलिफ्ट अच्छी कर रहे हो, तुम्हारी डेडलिफ्ट ही अच्छी हो रही है, तुम किसी को जाके पटक नहीं सकते. तुमको किसी को पटकना है तो जाओ अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को बूस्ट करो. Exactly. तुमको ऊंचा उड़ना है तो प्लायोमेट्रिक स्ट्रेंथ को बूस्ट करो. तुम हर एक स्ट्रेंथ एस्पेक्ट के ऊपर काम करो, तुम हर चीज़ में बेटर बनोगे. इट्स जस्ट नॉट कि तुम आज स्क्वाट बेंच डेड करोगे तो तुम अल्फा मेल बन जाओगे. द टीनेजर्स और द यंग जनरेशन whoever is doing it and whoever is doing it with a ईगो कि मैं बेंच स्क्वाट मार लूंगा इतनी तो मैं तुमको कुछ भी कर सकता हूँ. इट्स नॉट दैट. तुम रोड रेज में नहीं आ सकते हो. रोड रेज में हाथ भी नहीं चलते, रोड रेज में बंदूक चलती है. तो तुम्हारे मसल्स कुछ काम नहीं करने वाले. एंड इफ यू आर डूइंग इट फॉर दैट स्ट्रेंथ फीलिंग कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो यू आर डूइंग इट रॉन्ग. यू आर ऑन अ रॉन्ग पाथ, यू कैन से. Delusion है वो फिर. या दैट इज व्हाट आई से कि तुम बाइसेप कर्ल्स की भी तो स्ट्रेंथ पूछो सामने वाले इंसान को. तुम बाइसेप कर्ल्स कितना करते हो, तुम लैटरल रेजेस कितना करते हो, तुम शोल्डर प्रेस कितना करते हो. मिलिट्री प्रेस भी तो एक फाउंडेशनल मूवमेंट है, उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? क्योंकि उधर तो सब लोग पुसी है भाई. डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज वहाँ पे 50 किलो मार लो भाई, वो बड़ी बात है. 50 किलो के 10 रेप देके बताओ. नहीं, वहाँ पे हम लोग नहीं भाई, वो नहीं होता. आई हैव सीन पीपल दे पोस्ट देयर डेडलिफ्ट्स. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट यू, यू पोस्ट योर बेंच ऑल्सो. पीपल हु पोस्ट देयर डेडलिफ्ट डालते हैं, नंबर डाल देंगे वहाँ पे आगे. स्क्वाट डाल देंगे, नंबर डाल देंगे. लास्ट आ जाती है बेंच, बेंच जो नंबर डालेंगे नहीं उसका. Why does this happen? If you care a lot about the numbers, why are you not transparent about the numbers also? Then post everything. Like, fucking post it, भाई. Show what you're weak at. तुम अपनी weakness बताने नहीं चाहते, उसको shield की तरह use करना चाहते हो. और deadlift. Fuck it, भाई. What would you? This is the biggest problem with it. Very true. And this is the perspective that we need to change about the people. I think it's a wave ना. It's a wave ना. Powerlifting has been a wave. मतलब It's not about wave नहीं बोल सकते. powerlifting, but I'm it's glad. about Shout out to all the people who follow me. Nobody asked me yet कि आपकी स्क्वाट पीआर कितनी है, आपकी बेंच पीआर कितनी है. आई एम ग्लैड यू गाइस डिडंट. सागर को पूछेंगे लोग. मैं पावर लिफ्टर हूँ ही नहीं भाई, मैं पावर बिल्डर हमारा हूँ. पावर लिफ्टर यही है. भूल मत. क्या है पावर, क्या है तू? That fucking power builder is just another name. That's it. बट हाँ, सी फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक ये पॉडकास्ट ऑब्वियसली तेरा है, बट मैं बस इतना बोलूंगा कि स्क्वाट बेंच एंड डेड मैं जो करता हूँ मुझे बस चूल है, इसलिए मैं करता हूँ. I know. Like you have seen me how crazy I am. Power lifters लोग डाइट करेंगे, नींद लेंगे, ये वो. ब्रो तूने देखा है मेरे को, मैं एक रात पहले भंड था. मैंने जितने मेरे पियाज मारे मेरे जिम में सारे एक रात पहले भंड था. खंबा खींचा है मैंने. इफ पीपल आर वाचिंग दिस, मेरे रिलेटिव्स वाचिंग दिस, फक यू. हाँ, मैं ऐसा ही हूँ. मैं कैफीन पे जीता हूँ, मैं हार्डली 2 मील्स खाता हूँ. That's how it is, yeah. एंड मेरे जो दोस्त हैं जैसे प्रवीण होगा, कुणाल होगा, इन्होंने देखा है. मैं लाइक जो अभी मेरा एक फ्रेंड है अश्विन, हाँ, उनके जो कोच है, मेरा जो कोच है, उनको सब मेरे बारे में पता है कि मैं क्या करता हूँ. लाइक द वे आई लिफ्ट एंड एवरीथिंग. इट्स लाइक कि बस मुझे चूल है एंड मुझे एंगर इश्यूज है, इसलिए मैं जाके पावर लिफ्टिंग. Like if you see Ashwin, या अश्विन के साथ तुम एक बार कॉल पे कॉन्वर्सेशन पे आ जाओ, अश्विन के मुंह पे सिर्फ एक ही बात दिखी भाई. रात को 12 बजे बंदा, रात को 12 बजे ही इज कॉलिंग मी एट 12 midnight. भाई क्या बोलता है, क्या चल रहा है भाई? मैं समझ रहा हूँ भाई, तू अभी जस्ट आया होगा.
बट देन भाई ये प्रेप में ना देख तू अब तो बेंच तो बढ़ रही है, ये पीआई में अपन जीत जाएंगे भाई, बस मुझे एक बंदे का डर है, वो अगर आ गया ना पता नहीं, बट देन भाई इंप्रूव हो रही है, इम्पिंजमेंट इशू अभी जा चुकी है, मतलब भाई ये 1 घंटा ले रहा है यही बात करने के लिए, 1 घंटे के बाद तू बोल भाई सोना है, लव यू हाँ भाई चल ठीक है चल बाय, पर एक बात बताता हूँ भाई तेरे को, फिर है ना ये करते हैं अपन इसको लेके करते हैं, अपन वो करते हैं, अपन अश्विन की बातें कभी लड़कियों को लेके नहीं रहेंगी, अश्विन की बातें कभी हेट करने को लेके नहीं रहेंगी, किसी को हेट करना किसी को कुछ नहीं, भाई जो कुछ नहीं, अश्विन इज जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट लिफ्ट्स, दैट्स इट, दैट इज हाउ क्रेजी इज दैट टू, Lovely kid. क्यूटेस्ट गाय यू Lovely विल kid. एवर मीट, लाइक Lovely बंदा इतना साफ है दिल से एंड लाइक बहुत भोला भी है। कोई कॉल ही नहीं उठाया मैंने उसको, 10 दिन से कॉल नहीं उठाया मैंने भाई, मैं मुझे कल मिला था वो। मैं इतना शाम को ये सिचुएशन में रहता हूँ ना भाई, मैं सोचता हूँ यार मैं आधा घंटा तो घर पे निकालूं, 2 घंटे तो घर पे निकालूं, अब उसमें मैं कॉल आ गया, कॉल करता है जो कभी कभी मेरे को ना शाम के टाइम पे, और तभी मैं ऐसे सिचुएशन में रहता हूँ भाई मैं क्या करूँ अभी, मिजरेबल। हाँ भाई 2 घंटे 5 बजे को इंसान सो सकता है, जस्ट बिकॉज माई सेशन गॉट कैंसल्ड, आई स्लेप्ट फॉर एन आवर, फिर ताकि अगले सेशन के लिए रेडी हो जाऊँ, दैट इज हाउ समटाइम्स द सिचुएशंस आर सो बैड, बट देन दैट्स हाउ लाइफ इज, दैट्स हाउ इट इज, और कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ का। तो या लेटली ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, कंसिडरिंग जो जिम में चलता है आजकल, उसको लेके अपन ने अभी बात किया कि जिम में कैसे चलता है, जिम में लोग क्या सवाल पूछते हैं, fuck it boss, develop your overall strength in the gym also, there are a lot of aspects to work on, तुम पुल-अप्स के ऊपर काम करो, तुम डिप्स के ऊपर काम करो, तुम सोचो कि तुम्हारी शोल्डर प्रेस कैसी बेटर हो सकती है, तुम सोचो तुम्हारे बेंडिंग मूवमेंट्स, हिंजिंग मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी की स्ट्रेंथ दैट यू शुड गोल गेन, क्या है वो मैटर करता है। राइट, इट्स लाइक इफ यू वांट टू लुक लाइक अ माचो, जैसे इसने बोला कि स्क्वाट बेंच डेड हेवी करके नहीं, यू वोंट बी लुकिंग लाइक अ माचो, यू विल बी लुकिंग लाइक अ रेडा, यस लाइक अ रेडा। who is a are you addressing the person beside you? रेडा कौन बोला क्या तेरे है, को? आप फ्रेम में देख सकोगे। मैं मानता हूँ तू रॉक का एजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। fuck yeah, यस भाई now that a lot of people who have followed you and they have come in because of bodybuilding, obviously the fitness thing you've been posting, बट आई थिंक अभी तो वो काफ़ी क्लोज हो गए होंगे तेरे से, मतलब इंटरेक्शन हो रही होगी, कमेंट्स आ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। right, आई वॉन्ट देम टू नो कि वॉट वॉज प्रवीण बिफोर दिस फिटनेस थिंग। आई थिंक फिटनेस, यू बीन ऑलवेज बिन इन टू फिटनेस, वॉट वर यू डूइंग प्रोफेशनली? देर वर अ कपल ऑफ थिंग्स जो प्रवीण पहले भी कर रहा था, सो या लेट्स टॉक अबाउट दैट। so I'll tell प्रवीण सर, हाँ, where did the sir thing come from? Where did the sir thing come from? मैं वो सर से मेरे को याद आ रहा था अभी, मैं बाद में See, पूछता हूँ। Praveen sir thing came from, okay, let's go back. Let's go back in time. Yeah. यस Back in the time 2006, 2007 से start करते हैं, okay. I was a very introverted guy, भाई. You don't know, like you guys were not introvert, I don't think so. एक्सक्यूज मी Introvert जैसी चीज तुम ये तो जाड़िया था, तो ये इंट्रोवर्ट ही था। भाई मेरी फट जाती थी अगर कोई लड़की मेरे सामने आके बस ऐसे खड़ी हो जाए ना, मैं देखो भाई, पसीने से लड़की गीला। ये तक की बात आते आती है उधर इस साले की. तो तू मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं क्या गीला हो जाऊंगा क्या? बोल। It's not that. I'll tell you something. See, simple as that. introvert doesn't just directly define how you do or how you stand in front of the girls, how you react or act in front of the girls. Okay. गर्ल्स क्यों 2 बार बोला ना तूने? चाहे तूने भी 2 बार गर्ल्स बोला ना? किधर बोला girls? At the end of the day, bro, the world works on only 2 things, I would say. Money and girls. Fuck it. अभी ठीक है. Let's come to the topic. Okay. तो बैक इन द टाइम आई वाज सच अ गाय जो सेकंड या थर्ड बेंच पे बैठता था क्लास में. फर्स्ट बेंच पे भी इसलिए मैं बैठता था, मुझे नहीं चाहिए था कि टीचर आके मुझे पूछे, क्योंकि मेरे हाथ मेरे गीले होते थे कंटिन्यूस. इट्स सच अ काइंड ऑफ एंजाइटी दैट आई हैड. Yeah. दूसरी चीज़, मैं सिर्फ लिखते रहता था. जो टीचर बोलती थी ना, मुझे याद नहीं रहता था. तो मैं लिखता था ताकि मेरे को ना सेशन के बाद, लेक्चर के बाद उसके ना मैं देखूँ कि क्या चल रहा है. आई वॉज नॉट अ टॉप स्कोरर, आई वॉज एन एवरेज टू अ गुड स्कोरर किड. जो पढ़ता अच्छे से, समझता अच्छे से था, बट मेरा दिमाग है ना कभी वो टॉप स्कोरिंग के थॉट से जाता ही नहीं था कि मेरे को टॉप स्कोरर बनना है क्लास में. तो देखिए इतने मार्क्स लाने, लाइक 20 मार्क्स का पेपर है, मुझे 18 के लिए मेहनत नहीं करनी है, मुझे 20 के लिए मेहनत नहीं करनी, मुझे 15 के लिए मेहनत करनी है. पास होना। नहीं, पास होना तो 7 होता है भाई, 7 या 8 मार्क्स. मुझे 15 के लिए मेहनत करनी है ताकि मेरी माँ कुछ ना बोले. बट अनफॉर्चुनेटली माई मॉम वाज लाइक, यू नो द टिपिकल इंडियन फैमिली. तुम स्कूल में हो, तुम्हारा ओपन हाउस है, तुम्हारी मम्मी आई तुम्हारा पेपर देखने के लिए. इंग्लिश का पेपर था भाई. आई अटेम्प्टेड ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑल्सो. आई स्कोर्ड 19 on 20 इंग्लिश में, क्योंकि हमारे तभी शॉर्ट एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए थे. यूनिट के पहले एक एग्जाम होता था, उसके बाद यूनिट टेस्ट होती थी.
तो उस यूनिट में मुझे आई वाज द हाईएस्ट इन इंग्लिश, ठीक है, एंड देयर आर 2 or 3 अदर किड्स इन द क्लास. क्लास का स्ट्रेंथ वाज 60-70 किड्स, तो इसमें से तुम टॉप 3 स्कोरर्स में तो बड़ी बात थी. मैं बहुत खुश हूँ. Good boy. पहला पेपर मैंने इंग्लिश का बताया, उसमें मम्मी ने इतने रेड मार्क्स देखे, रेड सर्कल्स देखे, छमाट मार दिया मुझे भाई. ये क्यों है, ये गोल गोल किया हुआ ना, इसके लिए को एक मार्क का मिला. मतलब मम्मी इंग्लिश में 20 में से 20 नहीं दे सकती है वो. बोलते पर तूने ये गोल गोल ये क्यों है इधर बोलते. एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना उनके लिए पाप है भाई. मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना नहीं, उधर सर्कल आना ही नहीं चाहिए. दैट इज हाउ इंडियन मॉम्स आर. बट आई नेवर वाज अ किड जो टीचर्स के सामने ऐसा था कि ये मस्तीखोर है, ये बहुत ये करता है, ये ध्यान नहीं देता है. मैं हमेशा ध्यान देता था. लाइक इवन in the later phases I was a very introverted kid, like till standard 10th. तो वो introverted phase मेरा ऐसा था ना, I was so close to my mother, so close कि मैं जब तक मेरी मॉम मेरे साथ थी, मेरी मॉम मुझे स्कूल छोड़ती थी. मैं मेरी मॉम का हाथ एल्बो पे पकड़ता था ऐसे, और मैं मेरी मॉम का हाथ एल्बो पे पकड़ के स्कूल जाता था. बच्चे स्कूल अकेले आते थे, 4 बच्चों का पता, 4 बच्चों का ग्रुप खड़ा है, एक रुपये वाली पेप्सी पी रहे हैं, बोर खा रहे हैं, कि आम खा रहे हैं, कि क्या खा रहे हैं. मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के खड़ा था जब तक लाइन नहीं जाती थी आगे. सच अ गाय, सच एन इंट्रोवर्टेड गाय, जिसको कुछ और चीज़ से मतलब ही नहीं था. बस मेरे को मेरी माँ से मतलब था भाई. और स्कूल जाता था, एंड में बाय बोलता था, और फिर मैं घर आता था. फिर घर आते टाइम में मॉम के लिए रुका रहता था स्कूल में नीचे, कि मैं मम्मी आएगी लेने के लिए. कभी कभी मेरी मॉम स्कूल में फ़ोन कर देती थी, मैं नहीं आ रही हूँ करके, आज उसको बोला आ जाने के लिए अपने दोस्तों के साथ. दैट शुड हार्डली हैपन. ये कभी नहीं होता था, बहुत कम होता था. बट दिस आई वाज सच अ गाय. Back in 2010 what happened is my mom was sick earlier. मतलब मेरी मॉम 2005-06 में बीमार पड़ी थी एक बार. Then she started falling sick again. और 2010 में सितंबर के टाइम पे she died. She died. Okay. Just a month after my mom passed away, my dad passed away. My dad had a severe stroke. उनको आया और उनकी भी डेथ हो गई थी तभी. He was still in the hospital. मैं उनको खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ. When my mom passed away, मैं बोला भाई, मैं मतलब it was a very shocking thing. मतलब मेरी मॉम के डेथ के टाइम पे तो I couldn't even cry. I was in such a shock. I was in a shock. ठीक है. I still had a teacher back then who used to, मतलब उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा रहेगा. My class teacher, बिंदु मिस नाम था उनका. I still remember. Everybody from Saraswati Vidyalaya knows who Bindu Miss is. She was a algebra geometry teacher. उनका मैथ सिखाने का तरीका, उनका मैथ सिखाना, she was made for mathematics. उनके मैथ सिखाने का ऐसे मुझे मैथ्स अच्छा लगा. जब उनका मैथ्स खत्म हुआ, मैंने मैथ भी छोड़ दिया. मैथ मुझे चाहिए नहीं था मेरी जिंदगी में. टिल बिंदु मिस वाज देयर, आई वाज डूइंग मैथ, नथिंग. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ खत्म कर दिया था मैं. तो और इंट्रोवर्ट से मुझे याद आया भाई, तुमको पता स्कूल में होता था लेजिम, परेड. और सच अ गाय जिसको ना क्लास में बुलाया था कि ना लेजिम में किसको आना है हाथ ऊपर करो. मेरी गांड फटती थी भाई हाथ उठाने के लिए, पर मुझे करना था. मैं घर पे प्रैक्टिस करता था. आई प्रैक्टिस लेजिम एट होम, कि मैं उधर स्कूल में जाऊँ और मैं भी करूँ, ताकि कोई मुझे देख ले करते हुए और बोले अरे इसको अच्छा करता है तो आ जाओ भाई. बट देन मुझे हाथ नहीं उठाना था. एंड हमारे जो पीटी सर थे, वो लगता है बहुत जजमेंटल था बंदा. देखता था तू उठ चलो इसके प्रैक्टिस के लिए. मतलब जो बैड एस कूल डूड्स लगते थे क्लास के, बेंच जो उसको उनको उठाता था. हम जैसे चूते को उठाएगा नहीं भाई. दुबले पतले लुखे लड़के जो सबसे आगे बेंच पे बैठता है, इनको उठाएगा नहीं बंदा. हाँ, हमको उठाएगा नहीं बेंच. और मुझे तो करना था भाई. एक बार मेरा दोस्त था भाई आकाश डोंगरे करके, मेरे बाजू में बैठता था. आकाश डोंगरे एंड गोपाल वॉज सबसे चूतिया, डोंगरे वॉज मिड लेवल चूतिया, एंड आई वॉज अ लिटिल बेटर चूतिया देन देम. बट तीनों चूतिए. हम तीनों ना 10th स्टैंडर्ड तक हम तीनों बेंच है ना सब खोदते थे, बेंच का क्ले निकालते थे, उससे कुछ बनाते थे भाई. दिस वाज मी भाई बैक देन. मी, गोपाल एंड आकाश. एक बार बेंचोद आकाश को उठा दिया भाई और उसको बोला चल परेड के प्रैक्टिस के लिए और लीजिम के प्रैक्टिस के लिए. भाई ईगो अलग लेवल पे हर्ट हो गया. घर पे आके रोया मैं. आई क्राइड. मम्मी बोलती है मेरे को बेंचो तू रो क्यों रहा है. बोलती मम्मी आकाश को उठाया पर मेरे को नहीं उठाया लीजिम के लिए. और आकाश बेंचो फुल एटीट्यूड में बीच में मिड लेक्चर सर आएंगे बुलाने के लिए. लेजिम वाले चलो प्रैक्टिस के लिए. डोंगरे उठ के जाता था, मैं डोंगरे को देखता था. जो मैं इतना गंदा नसीब है क्या मेरा, जो मैं इसके लिए भी इस काबिल भी नहीं हूँ. तो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तो व्हेन माय डैड पास्ड अवे भाई, उसके बाद है ना स्कूल भी रोज़ जाता था ना. पहले मैं स्कूल जाना बंद कर दिया मैंने. 10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स था मेरा. अक्टूबर 2008 स्कूल जाना बंद कर दिया मैंने. 1-1.5 महीने तक तो मैं घर पे ही था. मैं घर पे बैठा रहता था, घर पे ही. मैंने घर पे जो चीज़ें थी सब बेच दी, खा लिया. सोना बेचा, बर्तन बेचे, खाने के लिए कुछ है ही नहीं भाई इंसान के पास. 15 ईयर मेरे एक दो रिलेटिव्स, 14 साल का था मैं, आई वाज जस्ट 14. मेरे घर पे रिलेटिव्स आते थे, भैंस जो केला लेके आते थे.
केला लेके आते, केला लेके आते। मुझे केला कितने दिन खाऊं? केला पार्ले जी खाता था मैं, केला पार्ले जी खाता था भाई, केला पार्ले जी। This is not funny, but what? Such a fucking stress कि भाई जो मैं नीचे आता था दुकान में जलेबी खाता था। Nobody is there to tell me, right? जलेबी खाता था, छोटे छोटे 10-10 रुपए वाले केक आते थे वो खाता था, और ऐसे मैंने कुछ टाइम निकाला। तो there's another friend of mine, his name is Omkar. Omkar was a good, very good friend, just like a brother. उसने बोला मेरे घर पे चल बहनचो, तू मेरे घर पे खाना खाया करके। टिपिकल मालवनी फैमिली, हर रोज बहनचो नॉन वेज, एंड आई वाज अ प्योर वेजिटेरियन। माँ की चूत कभी नॉन वेज खाया नहीं, मच्छी का बस। मतलब मेरे घर पे अगर स्मेल आया कुछ चीज़ का, मैं उल्टी करता था। सूखा मच्छी का स्मेल आया नेबर्स के पास से, ये सब क्या है करके, मुझे नहीं जम रहा इधर, मुझे रहना ही नहीं है करके। ऐसा सिचुएशन हो गया था मेरे साथ, जहाँ पे मैं भी करंटली रह रहा हूँ। उसके पहले जहाँ पे रहता था वहाँ पे फिर भी वेजिटेरियंस थे मेरे फ्लोर पे, बट यहाँ पे तो नॉन वेजिटेरियंस थे। भाई नहीं जम रहा है, अब उनके घर पे खाना तो खा के जिंदगी निकालनी है भाई, खाना नहीं खाएगा तो मर जाऊंगा मैं। एंड सच अ थिन किड जिसके जेब में ना भाई मेरा दिन निकलता था कैसे, ना माँ ना बाप, दिन निकलता था 10 रुपये से, हफ्ता निकलता था मैं 10 रुपये पे। वो 10 रुपये मेरी टाइड कपड़े धोने के साबुन, कपड़े धोने का सैशे, उसको छोड़ के एक 4 रुपये वाली सर्दी की टैबलेट, 10 टैबलेट का पैकेट आता था, सबसे सस्ता पैकेट वही था, और ऐसे में दिन निकलता था भाई। एवरी डे वाज यूज्ड टू बी लाइक दिस। आई स्टिल रिमेंबर मेरे फ्रेंड्स, मतलब जो मेरे स्कूल वो टाइम पे बिल्डिंग में फ्रेंड्स थे, बहन जो मेरे को समझ में आता था। तुम लोगों को भी अगर देखते रहोगे ना आज, तो मुझे तभी भी समझता था ये चीज़ कि तुम लोग है ना, मैं कुछ भी पहन के आ रहा हूँ, तुम लोग मेरे को अच्छा बोलते थे, ये भोसड़ी वाले लोग मेरे को अच्छा बोलते थे, अच्छा लग रहा है भाई, तू बहुत मस्त लग रहा है करके। मेरे को कभी फील नहीं होने देते थे बहनचोद। 4 दोस्त थे मेरे बिल्डिंग के दोस्त, वो फील नहीं होने देते थे बहनचोद तू ये, मैं पुराने कपड़े पहन के आता था, गरबा खेलने जा रहे सब लोग, मैं उसमें भी रहता था, हाँ चलो जाते करके, लाइक बिकॉज माई फ्रेंड्स आर देयर। वो लोग ऐसा फीलिंग देते थे बहनचोद बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को समझ में आता था भाई मैं अच्छा नहीं लग रहा रहूँगा उतना, I might not be looking good. That's sweet. But ये है भाई, this is how it is. Like those were like good guys. I don't remember any of them now because I don't meet them. पता भी नहीं कौन थे, याद नहीं आ रहा, because back in 2008-9 मुझे नहीं याद है। लोगों को याद होता होगा 2 साल की उम्र में उनके गांड में क्या डाल दिया। Fuck it भाई, I'm sorry. But मेरे को नहीं याद रहता है। I don't want to be that fake कि मुझे पता है कि भाई 2 साल की उम्र में मेरे पिछवाड़े में किसने क्या डाला। I'm very sorry. If किससे is watching it, I'm very sorry किससे। I'm very sorry दिशांग। But I'm not disrespecting the podcast. It's a very authentic podcast channel. But Obviously. I don't remember like 2 साल का, मेरे को 10 साल की उम्र में हर चीज़ याद नहीं रहती है। तुमको भी याद नहीं। I don't know if you guys remember it. मुझे तो याद है। 2 साल की उम्र में क्या होता था तेरे साथ? कौन सी चड्डी पहनता था साले? तो हाँ, तो जब ये सिचुएशन आया, मतलब जब ये सिचुएशन आया जिसमें मेरे को, अब मैं स्कूल जाता था, मैं स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ। माई टीचर्स यूज्ड टू कॉल मी, मैं उनके घर पे खाना खा रहा हूँ, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, घर पे एक वेजिटेरियन बंदा खाना खा रहा है, मैं चिकन के पीसेस मुंह में डालता था भाई, और वो रबर जैसे लगते थे, अंदर जाते नहीं थे। एक दो बार ऐसा उल्टी जैसा होने लग गया मेरे को, मैं मुंह से निकालता था, उसको पॉकेट में डाल देता था चिकन के पीसेस। ना कैसे बोलूँ भाई, तुमको सामने वाला इंसान दे रहा है, तुम ना कैसे बोल सकते हो। ओमकार's मॉम, शी इज़ मोर देन अ मदर टू मी। उन्होंने मेरे हर प्रॉब्लम को ठीक किया भाई, सर्दी खांसी से लेके हर एक प्रॉब्लम। ज़बरदस्ती सूप पिलाती थी, जायफल वायफल डाल के कि ये गरम मसाला डाल के इसको पिलाऊंगी, ये ठीक हो जाएगा। सर्दी खांसी का प्रॉब्लम ही ज़िंदगी में से निकल गया भाई। आई कांट थैंक हर मोर, और आई कांट, शी ओज मी द होल लाइफ, आई ओ हर द होल लाइफ, सॉरी, कि जो मैं उसका कर्जदार जिंदगी भर ही रहूँगा मैं। माई अंकल एंड आंटी वे स्टिल देयर हु आर सपोर्टिंग मी, बट शी इज़ द फर्स्ट पर्सन। माई अंकल एंड आंटी, इट्स नॉट जस्ट अंकल एंड आंटी की मेरे रिलेटिव्स थे। आई टेल यू गाइज, अगर रिलेटिव्स की 4 बातें सुन के तुम चुप बैठे हो ना, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, वो कभी नहीं आने वाले। आई टेल यू, व्हेन माई मॉम डाइड, व्हेन माई फादर डाइड, माई मदर्स मदर डिडंट कम हियर। उसके पेरेंट्स भी नहीं आए यहाँ पे मिलने के लिए। जस्ट बिफोर माई मदर डाइड, माई नाना केम हियर, ही टुक माई सिस्टर्स टू द विलेज, बट उसको छोड़ के कोई नहीं आया। उसकी माँ भी नहीं आई, मेरी मम्मी की बहन भी नहीं आई, मेरी मम्मी का भाई भी नहीं आया। एंड आई डोंट हैव एनी शेम टेलिंग दिस थिंग कि रिलेटिव्स मैटर करते, नहीं मैटर करते, बिल्कुल मैटर नहीं करते। वो नहीं आने वाले तुम्हारे लिए कभी भी। तो उनके ओपिनियंस और उनके थॉट्स मैटर नहीं करते अगर तुम कुछ भी कर रहे हो तो। इफ़ यू थिंक यू डूइंग समथिंग राइट, तो उस चीज़ के बारे में तो सोचो ही मत। अगर उनकी, मेरे माँ की माँ नहीं आ सकती, तो तुम सोच लो फिर क्या चीज़ें हैं। तो हाँ, अगेन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टॉपिक। तो ओमकार यूज्ड टू टेल मी, ओमकार को दिखाई देता था कि ये साला जेब में डालता, साला भैंस चिकन के टुकड़े जेब में डाल देता है भैंस मुंह से निकाल के। बोला भाई चल अपन ना तो एक चीज़ खिलाता हूँ, चिकन लॉलीपॉप खिलाता हूँ। तो चिकन लॉलीपॉप अलग चीज़ लगने लग गई, पर फिर भी चिकन जाता नहीं था। फिर चिकन तंदूरी खाना चाहिए। दैट इज हाउ आई ट्रांजिशन फ्रॉम अ वेजिटेरियन पर्सन टू अ
प्योर नॉन वेजिटेरियन. नाउ आई एम नॉट अ वेजिटेरियन एनीमोर. प्योर नॉन मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ भाई. आई एम नॉट अ मिक्स्ड वेजिटेरियन पर्सन. वेज और नॉन वेज खाता हूँ मैं. नॉन वेज कार्निवोर. मैं वेजिटेरियन खाता ही नहीं भाई. I'm not just proud of. I'm not proud of it. You should not be proud to be a vegetarian, vegan or a non-vegetarian. अगर तुम्हारे अंदर गिल्ट है कि तुम जानवरों को खा रहे हो और उसके वजह से तुम वेजिटेरियन या वीगन बन रहे हो, तो यू आर अ हिपोक्रेट भाई. तुम उसके बारे में क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ नहीं खा रहे हो. मैं तो नहीं खाऊंगा, मेरे बाजू में कुछ भी हो. मैं तो रेप नहीं करूंगा, मेरे बाजू में रेप हो तो चलेगा. यू जस्ट दैट पर्सन. आई एम नॉट टेलिंग द नॉन वेजिटेरियन पर्सन इज द रेपिस्ट, बट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट कि तुम वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन हो, तुम नॉन वेज, इट्स अ चॉइस. फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेजिटेरियन मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं रोज़ चिकन खा रहा हूँ, रोज़ वेज, रोज़ फिश खा रहा हूँ, रोज़ सब कुछ खा रहा हूँ. कभी कभी तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, एक दिन फास्ट कर लूंगा मन से, दिल से. ऐसे नहीं कि फास्ट करना है इसलिए फास्ट करना है. 16 शनिवार वाला चीज़ नहीं है. बात यार. I'm just telling you, but just fasting, bhai. Just fasting, just normal fasting, just to make my gut, free. That's how it is. तो हाँ, after my dad passed away and mom passed away, ये वेजिटेरियन वाला फेज आया और मैं जो पूरा ट्रांजिशन हो गया भाई. द कॉइन फ्लिप्ड फ्रॉम हेड्स टू टेल्स. मैं कॉलेज में गया ना भाई, मैं खुल गया. मतलब मैं खुल गया. मैं मस्ती करने लग गया. शुरुआत मस्ती से हुई. मैं मस्ती करने लगा. मैं मस्ती कभी करता नहीं था. बिकॉज मेरे क्लास में सारे आधे से ज़्यादा मराठी मीडियम के लोग थे भाई, और साले इंग्लिश बोलना चाहते हैं. मैं बोला मैं इंग्लिश बोलना नहीं, मेरे को इंग्लिश बोलने जम नहीं रहा है, बट मेरे को लिखना अच्छे से आता है. आई एम नॉट यूज्ड टॉकिंग इन इंग्लिश. बट देन माय फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम मराठी मीडियम साला बात करने की कोशिश कर रहे, बिकॉज फॉर देम इट्स अ वेरी फ्रेश स्टार्ट. फ्रेश स्टार्ट है, करेंगे हम लोग. एंड आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम मराठी मीडियम हु टॉक फैंटास्टिक इंग्लिश. हिंदी मीडियम थे बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं. तो तुमको ये चीज़ भी नहीं सोचना कभी कि मैं हिंदी मीडियम में था भाई, मेरी तो इंग्लिश खराब ही रहेगी भाई. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आज कॉर्पोरेट्स में बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं. उनकी इंग्लिश देख के तुम बोलोगे भी नहीं कि कभी ये हिंदी या मराठी मीडियम के लोग रहे होंगे. इट्स जस्ट यू वांट टू इम्प्रूव. तुम साल 2 साल में एक लैंग्वेज सीख लोगे और तुम उसमें बेटर बन जाओगे. इट्स जस्ट अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट्स कमिंग इन द मिडल ऑफ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. और तुम अगर वो चीज़ को समझ के उस चीज़ को अच्छे से लोगे तो तुम वो चीज़ सीख जाओगे. दैट्स हाउ इट इज़. इफ़ यू कंसिडर योर सेल्फ एज वीक, तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में. तो मैं बोला भैंचो मेरे को भी इंग्लिश बोलना है. मैं तब 2011-12 में मैंने ट्विटर अकाउंट चालू किया था, जब कोई था ही नहीं कभी ट्विटर. मैंने क्यों चालू किया पता है? क्योंकि मेरे को ना बोरिंग चीज़ें नहीं पढ़नी थी भाई. मेरे को कार्स, सरकाज़म, जोक्स और ये सब ट्विटर पे बहुत ज़्यादा होता था. ट्विटर वाज द रेज बैक. ट्विटर वाज द रेज. तो मैं ट्विटर पे था भाई, और वहाँ से मेरे को पढ़ने की आदत लगी ये सब चीज़ों के ऊपर. कार्स वार्स का, टेक की चीज़ों के बारे में, हर चीज़ के बारे में मैं पढ़ता था वहाँ पे. फिर जब मैं डिग्री कॉलेज में गया, मेरा डर खत्म हो गया भाई. डर जीरो हो गया मेरा. मतलब मुझे नाचना है तो मैं रास्ते पे नाच लूँगा. किसी के साथ भी बात करना है, टीचर से बात करना है, मैं टीचर से बात कर लूँगा. टीचर से मजाक मस्ती करूँगा. एक बार तो ये हुआ था, मैं पीछे बैठा हूँ, मेरा पूरा ग्रुप पीछे बैठा, हम लोग मस्ती करते हंस रहे थे, और टीचर ने गलती से मेरा नाम ले लिया. पीछे बैठ के मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है, आगे आके ये प्रेजेंटेशन दे के बताओ. मैं गया, मैं चला गया. लिटरली मैं आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास. और वो प्रेजेंटेशन में ना मैंने पता नहीं एक टॉपिक था, आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक. उसमें ना मैंने कीबोर्ड लेके कुछ तो ऐसा करके बताया. टीचर मुझे सच में चूतिया है, जिसको बुलाना नहीं चाहिए, कभी बुलाया नहीं. When my teachers used to, I'm very sorry if my teachers are going to watch this. I'm not going to specifically tell you कि कौन से टीचर रहेंगे वो. स्लाइड स्किप कर देते भाई कभी टीचर. एक को बोले मैम स्किप कर दिया. That's not important. Okay, ठीक है, चलेगा. आगे के टॉपिक के ऊपर आ गए. फिर सवाल पूछते थे बीच में ही. Like my group was like, पूरा क्लास आगे बैठा है, हम पीछे के 4 रोज क्लब कर देते थे. एक ही लाइन बन गया है. पीछे का 4 रो नहीं है, पीछे का सीट है ना, वो बीच का डिवीजन ही नहीं उसमें. 4 रोज का एक सीट बना दिया हमने. पीछे बैठ के फोन में टाइम पास कर रहे हैं सबके साथ, मस्ती कर रहे हैं, मजाक. कोई कुछ बोलता नहीं था भाई. लेटर वंस व्हाट हैपेंड, मेरे एक दोस्त था भाई, वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज मयूर. ओके, वो ना भाई अलग चूतिया था. पढ़ाई की बात नहीं कि पढ़ाई में अच्छा था, ऐसा कुछ. पढ़ाई में भी एकदम नॉर्मल ही था भाई, कुछ पढ़ाई में भी अच्छा नहीं था. उसको ना पढ़ना ही नहीं था उसको उस दिन पढ़ना. आई वाज सो शॉक कि कोई ऐसा भी रिप्लाई कर सकता है. ठीक है, माय कॉलेज डेज, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माय कॉलेज डेज. और मैम सामने से आ रही है, उसको गुस्सा आया मैम के ऊपर, पता नहीं क्या. उसने डिवाइडर लिया और बेंच पे फेंका जोर से. वो बेंच से बाउंस होके मैम को लगा, सीधा प्रोजेक्टर स्क्रीन पे डिस्प्ले के ऊपर लग गया. उसका मोटिव नहीं था कि मैम को मारे, उसको उसने फेंका था सिर्फ, और वो ऐसा बैठ गया. मैम बोलती है किसने फेंका? घंटा कोई कुछ बोल रहा है, किसने फेंका? किसी मजाल के कोई पीछे के नाम पे किसी नाम नहीं थे. हम लोग ने बुक नहीं निकाला, हम वी आर नॉट नोटिंग डाउन एनीथिंग. वो मैम आ रही है तो थोड़ा अपना एक होता है ना थोड़ा सा दैट कर्टेसी टू एटलीस्ट प्रिटेंड एंड टू बी अफ्रेड ऑफ योर टीचर, टू एक्ट लाइक यूर अफ्रेड, एंड नाउ यू जस्ट टेकिंग योर पेन एंड पेपर आउट कि टीचर का ईगो सेटिस्फाई कर लो भाई कि उससे तुम डर गए. ये चूतिया ऐसा बैठा. मैं बुक निकाल रहा हूँ, मैं कुछ लिखा नहीं, मैं एक्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 2 लाइन लिख दिया जब तक वो यहाँ पे आई तब तक.
वेयर इज योर बुक? मयूर को बोलते वेयर इज योर बुक? व्हाई आर यू नॉट टेकिंग नोट्स? आई एम नॉट वेल. Sure. I'm not well. मैम क्या बोलेगी भाई? I'm not feeling well. बस agreeable. मैम ने उठाया, उसको बाहर निकाल दिया. वो चूते ने डिवाइडर उठाया नीचे से और बाहर चला गया. तभी के तभी बीच में पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट रिमेंबर, मेरे को भी बाहर निकाल दिया और ये बाहर खड़ा है और मैं नीचे देख रहा हूँ पूरा सफेद पाउडर गिरा हुआ है नीचे. ये डिवाइडर से वॉल खींच रहा है. वॉल को खरोड़ के निकाल रहा है. मतलब क्या हो गया भाई? मेरे को कैसे बाहर निकाला? ये चल रहा है भाई, वो पूरा पेंट गिर गया नीचे. बाद में एग्जैक्टली मेरे क्लासरूम के बाहर ना एक आइल था, उधर कॉर्नर पे ना एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे से तुम नीचे का फ्लोर का देख सकते हो. इट्स जस्ट लाइक अ बालकनी. इट्स नॉट अ बालकनी बट इट्स लाइक अ बालकनी. वहाँ पे बैठे हैं हम लोग. चल इधर बैठते करके क्या है, बाहर ही आने वाले तो है नहीं, हम बैठ जाते हैं यहाँ पे. पनिशमेंट के टाइम पे. हाँ, पनिशमेंट के टाइम पे हम बाहर तो आने वाले भी नहीं. एक वो उधर बैठा है, एक इधर बैठा. आई स्टिल हैव अ फोटो. आई डोंट हैव फेसबुक नाउ. तो फेसबुक इंस्टाग्राम पुराना वाला फेसबुक था मेरा, इंस्टाग्राम था मेरा तभी का, स्कूल टाइम कॉलेज टाइम का. तभी हमने वहाँ पे ना फोटो शूट किया है. मैंने ऐसा एक फोटो निकाला, गेट फक ऑफ ऐसा कुछ लिखा है बाजू में वॉल के ऊपर, लाइक यू नो वो काइंड ऑफ क्रिंज. तो फिर प्रिंसिपल राउंड पे था भाई. अब प्रिंसिपल को हमको प्रिंसिपल दूर से दिख गया. वो इधर से लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था. हम लोग भैंचो ये इधर आने वाला है पक्का. हम लोग वो प्रिंसिपल उस तरफ से जाएगा तो हम लोग इस तरफ से निकले कि हम लोग भैंचो कैंटीन में चले जाएंगे. हम लोग जैसे ही आगे पहुंचे ना, इधर से एक आइल है यहाँ पे, मैं और प्रिंसिपल हम लोग एनकाउंटर हो गए. और मयूर एग्जैक्टली प्रिंसिपल के इस सामने. मयूर जंप मार के उल्टा घुमा, बोलता है मेरे को, बोलता है इसको इंग्लिश में कुछ तो बोलना, इसको इंग्लिश में कुछ तो बोलना. हम लोग बोलूँ भाई? तो बोलता है वो उसको बोल रहा है ए ब्रो हे मयूर, कुछ तो उसने बोला करके. तो मयूर घुमा, मयूर नीचे देख रहा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बोलना ही नहीं है. बोले सर वी आर गोइंग टू द कैंटीन, लाइक वेयर इज यू डोंट हैव क्लास टुडे. तो पता नहीं क्या बोला, आई डोंट रिमेंबर इट. बट हम लोग ने वो बोल के स्किप करके हम लोग निकल गए कैंटीन की तरफ. कैंटीन में जाके बैठे एंड वी यूज्ड टू स्किप अ लॉट ऑफ क्लासेस भाई. हमारा कॉलेज का ना हमारा फर्स्ट बैच था एंड वी यूज्ड टू स्किप अ लॉट ऑफ क्लासेस. व्हाट कॉलेज? जैसे एसडीवी, एनएचएस सेक्टर 14 में न्यू. अच्छा हाँ, राइट. तो हमारा फर्स्ट बैच था और वो टाइम पे ना मूवी आई थी एक फालतू, तू जला तू बला को कुछ तो मूवी आया था, ठीक है. उसमें कॉलेज था फालतू कॉलेज, जो एक्चुअली रजिस्टर्ड नहीं था. हम लोग को लगने लगा भैंसो ये हमारा कॉलेज भी ऐसी है, ये रजिस्टर्ड ही नहीं लगता हम लोग को, क्योंकि हम लोग साला 10-10 दिन नहीं आ रहे हैं. अब ऐसा लग रहा है अब कंटा लगा क्लास स्किप करके. अब जाना चाहिए भाई हम लोग को थोड़ा सा, वी शुड गो. एंड देन ये तो चलो ठीक है, कॉलेज का टाइम का सीन हो गया. देन वी यूज्ड टू हैव इंडस्ट्रियल विजिट्स. ओके, IV guys, don't skip the IV because IV is the only part that you'll remember. Whole lifetime you'll remember this part of your college. इसको छोड़ के शायद ज़्यादा नहीं. The nerdy people won't remember that part. They'll remember the academic वाला part. But you guys are not nerdy. The 90% of the audience will only remember this part. तो एक I still remember हम लोग का ना गोवा IV था भाई. IV is just for fun. IV is actually for fun. बट IV गोवा में, IV गोवा में IV ऐसे ही होता है भाई. IV ऐसा कुछ नहीं होता. IV is industrial visit is just for fun only. So that they can get money. I'm sorry colleges, universities. I'm not gonna come to that part. तो हम लोग IV गए थे गोवा और my group was such a dangerous group. Every class has a group. You know, a group that is crazy भाई. वो इतना चूतिया ग्रुप होता है ना. मतलब हर कॉलेज में एक ग्रुप ऐसा होगा जो इतना चूतिया ग्रुप होता है, जो हर अरेंजमेंट करके रखता है आईवी के लिए, कॉलेज फेस्टिवल्स के लिए. उनका ना पूरा उनका कुछ सेटलमेंट रहेगा. yes I was a proud prime part of that group, prime member of that group. तो हम लोग का क्या था पता है, you won't believe, every other person wanted to be a part of our group in IV. और लड़के कैसे होते हैं, लड़के कॉलेज में यार आईवी में जाएंगे, इस लड़की को मिलेंगे, उस लड़की को मिलेंगे, इस लड़की के पास जाएंगे, उस लड़की से बात करेंगे. हमारा क्या था पता है क्या, हमने हमारा पूरा रूम जिलेटिन पेपर से कवर कर दिया. हर एक ट्यूबलाइट जिलेटिन पेपर से कवर्ड है भाई. बाथरूम के लाइट्स भी जिलेटिन पेपर से कवर्ड है. हुक्का असेंबल्ड हुक्का हमने असेंबल करके हम हुक्का वहाँ पे लेके गए. एक के बैग में कुछ है, एक के बैग में कुछ है. हुक्का लेके गए. भांग लेके गए, भांग पेप्सी में डाल के भांग. अब पेप्सी की बोतल क्या समझ में आ रहा है, स्मेल भी लोगे तो भी क्या समझ में आ रहा है, उसमें भांग डाली करके. भांग के गोलियाँ आती छोटी छोटी, 5-5 10 रुपए की गोलियाँ आती, हम लोग अलग से लेके गए. महादेव नहीं. अब हम थोड़ी ना भाई दारू लेके जा रहे हैं, हम तो भांग लेके जा रहे हैं. उधर जाके हमने पेप्सी के बोतल में ओल्ड मॉन्क मिक्स किया, भांग मिक्स किया, पूरा भांग का पूरा पाउडर बना के लिक्विड बना के उसको भांग, और भांग दारू एंड पेप्सी इज देयर इन दैट बोतल.
नाउ हमारे रूम में एक अलग डीजे एवरी नाइट होता था, हुक्का, दारू, भांग, और तुम इस रूम में एंटर कर रहे हो तो दो बड़े सिप वो भांग के पी के एंटर करो। भंड कर रहे हैं हम सबको। एंड देन पूल में जाना था भाई। पूल में जाने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि वो टाइम पे अंडरवेयर पे तुमको उतरना है पूल में। बिना अंडरवेयर के तुम पूल में उतर नहीं सकते हो, या यू शुड हैव अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम। कौन स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके गए? मैं भंड भाई, मेरा एक दूसरा दोस्त भंड। हम गए भैंजो चड्डी में, अंडरवेयर पहनी हम लोगों ने सिर्फ। एक अंकल था, फॉरेनर अंकल, वो पूल में था। हम गए भैंजो अंडरवेयर में पूल में उड़ी मार, पूरा कॉलेज ऊपर से देख रहा है, दो भैंजो अंडरवेयर में उतर रहे। बाद में होके गए हम लोग। देन वी केम इनसाइड द रूम, और सब भंड भाई एकदम अलग लेवल भंड, एकदम अलग लेवल। अब एंड में क्या होता है, रात को टीचर्स का एक राउंड आता है जो हर एक रूम को चेक करेंगे वो लोग, सब रूम में सब है कि नहीं। यस, सब रूम में सब कुछ है कि नहीं। हम लोग एक ट्यूबलाइट निकाल देते थे, वहाँ पे एक ट्यूबलाइट का मतलब वाइट लाइट चालू रहनी चाहिए। तो टीचर्स राउंड पे हम लोग का दरवाजा नहीं खोल रहा है हम लोग, फिर भी दरवाजा, क्योंकि सब भंडे भाई, अब सब कुछ सेटल है, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं सोया हूँ, मैं भंडों के सो चुका हूँ, नंगा सोया हूँ, पूरा नंगा सोया हूँ, बिना चड्डी के चद्दर उद्दर उड़ के मैं अकेला सोया हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड आकाश, विशाल, एंड आई गेस आई डोंट रिमेंबर, इट वाज ओमकार आई गेस। ये लोग ना खिड़की से ऐसा थोड़ा सा दिख रहे हैं, टीचर्स लोग आगे, हम लोग का दरवाजा ठोका है, अभी निकल गए लगता है आगे, तो निकल गए आगे ना, और वो लोग पीछे देख रहे हैं। भैंचो इतने से होल में हम लोग देख रहे हैं, इन लोग ने हमको बाद में बताया, इतने से होल में हम लोग देख रहे हैं, भैंचो टीचर्स ऐसे पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं करके। वो भोसड़ी का आकाश ऐसे देख रहा है ऊपर से, बंडे ऐसे देख रहे हैं, टीचर्स को ऐसे दिख रहा है। बोला भाई आ गए टीचर्स, खिड़की के पास ही आए, दरवाजा खोलो, बोला दरवाजा खोल दिया। इसलिए मैं 3 टीचर्स थे, वन मेल टीचर, बहुत मस्त सर था भाई, उसको सब पता था अंदर क्या हो रहा है, बट वो एक्चुअली आना नहीं चाहता था। वो एक्चुअली टीचर्स लोग को ये कर रहा था चलते चलते करके, वो सब तीनों अंदर आ गए। नितिन सर नाम था उनका। अब बाकी के टीचर्स लोग क्या बोलेंगे, क्या उखाड़ सकते हैं नितिन सर का, नितिन सर यू आर द बेस्ट। तो अब अंदर आ गए टीचर्स। बाकी के दोनों टीचर्स में से एक टीचर को तो हम लोगों ने बाद में रुला दिया था भाई, उसने धमकी दिया था मुझे बाद में, पर हम लोगने रुला दिया था। आई हैड अ फ्रेंड भैंचो, उसने गांड मार दी थी भाई, बताता हूँ वो सीन भी बाद में थोड़े टाइम का। तो टीचर्स अंदर आए, बोले सब क्या चल रहा था? हाँ कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फाइन। लाइट ऑन करके बता, इन्होंने लाइट ऑन करके बता दिया। बेड के अंदर कौन है? मतलब बेड के अंदर प्रवीण है मैम, और कोई नहीं है, मत निकालो बेड, मत ब्लैंकेट मत निकालो। नहीं हम लोग को चेक करना है। मैम नहीं मैम, प्रवीण ही और कोई भी नहीं है करके, उसने सब मुंह दिखाया करके, ये देखो प्रवीण ही अंदर की करके, बोलते नहीं ब्लैंकेट निकाल पूरा करके, क्या क्या रखा उधर? तो मैम कुछ भी नहीं है करके, कुछ भी नहीं है ब्लैंकेट के अंदर। तब तक हम लोग का एक दोस्त आकाश, उसने फुल भांग पे भंटा भाई, दारू पे भंट था वो, भांग पे भंटा। हम लोग आते ही हम लोगों ने सबसे पहले एक आधी भांग की गोली खा ली थी। एक फर्स्ट इंडस्ट्रियल विजिट के पहले हमने आधी भांग की गोली खा ली थी। ये चूता रात को भांग में अलग भंट था, ये पूरा दिन भांग करा था। इसने एक साथ ज़्यादा नहीं किया, ये थोड़ा थोड़ा करके किया। मैम आप 3rd फ्लोर पे हो ना? आपका रूम नंबर ये है ना? ऐसे बोल रहा है। बेंच फट गई, भोसड़ी का इतना क्रीपी क्यों बन रहा है? वी वांट टू चेक। खोल दिया बेंच, वो दर्शन भाग गए। मैं बोला था ना मैम रवि नहीं है करके, आप समझ ही नहीं, भाग गए भाई, निकल गए, गायब हो गए। नेक्स्ट डे आई केम टू नो अबाउट ऑल दिस, ऐसा सब हुआ करके हम लोग का बेंच। फिर हम लोग अगले दिन, एक दिन तो ये हो गया, अगले दिन अब था हम लोग का डीजे नाइट था भाई। डीजे नाइट में तो फुल मतलब डीजे नाइट में तो फुल अलग अलग सीन्स हुए थे, मतलब कॉलेज की, मतलब पर हम लोग डीजे नाइट में हम लोग ने अलग मचान कर दिया था जो ऊपर डीजे, मतलब क्लब हॉल में एकदम अलग अपनी गाने बजा रहे हैं, डीजे के साथ हम लोग मस्ती कर रहे हैं कुछ। और 3rd नाइट था भाई हमारा। 3rd नाइट हम लोग आज तो कुछ अलग करना पड़ेगा, ये अब ये सब हो गया, दारू वारू का रूम में हो गया, अब साला ये हो गया, क्लब वाला, मतलब हम लोग ये सब हो गया। अब हमको 3 दिन क्लब जाना था भाई। और उधर ना हम लोग ने भाई एकदम सेटिंग लगा दी थी। हम लोग मेन गेट से नहीं जा सकते, खिड़की से पीछे साइड से कहीं से उतर के एक खुफिया रास्ता था भाई उधर, जैसे तुम जंगल में उतरोगे, फिर उधर से तुमको एक मेन रोड पे जाने के लिए थोड़ा सा जंगल का स्पॉट था, वहाँ से तुम मेन रोड पे आ सकते हो और वहाँ से तुम जाओगे। हम आई डोंट रिमेंबर, वो मच्छी का सिंबल है भाई, फिश का सिंबल है उसका, वो उनका स्टैम्प ना फिश का सिंबल है। वो क्लब में गए थे हम लोग। अच्छा, मेरा दोस्त जय, मैं, आई गेस विशाल वाज नॉट देयर, बट 2-3 और दोस्त हैं। हम लोग वहाँ से ऑटो करके या कुछ तो करके हम लोग चले गए भाई। उधर हम लोग ना GTA वाइस सिटी में ऐसे चलते ना, ऐसे एक ही जगह पे खड़े कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा भाई, तो ये सब क्या हो रहा है? जो एकदम फुल आउट गोइंग बंदा, आउट गोइंग लड़का था भाई। वो उस रशियन से बात करने लग गया, रशियन कपल था, उनको बोला भाई लेट्स स्मोक अप टुगेदर या यू नो। उसने उसका से जॉइंट लिया। जय भंड, जय 3 ट्रैक में भंड, जय को कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या हो रहा है। मैं भंड हूँ बेंचो, मेरे साथ एक ही बंदा था सोबर, ओमकार कैसे हम लोग को रिटर्न लेके आया। बट रात को तो समझ गया बेंचो, हम लोग अंदर होटल के अंदर आते चिल्ला रहे, हम लोगों ने जो मजा किया, पार्टी किया, हम लोग चिल्ला रहे। और अगले दिन किसी ने कुछ नहीं बोला। नेक्स्ट डे जब चेकआउट था तब पता चला बैफ
बैचलर्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस वाला ग्रुप था एक, उन लोग के रूम में चद्दर वद्दर के अंदर उल्टी है, अरे रे रे बेड को उन लोगों ने पलटी कर दिया क्योंकि उल्टी है, क्योंकि हमारे रूम से भांग मार के गए खुद के रूम में उल्टी। लिटरली 10-15 हज़ार का बिल उन लोग को भरना पड़ा है अलग से। और कोई क्या बोलेगा, हमारे रूम में हुआ, हमारा रूम क्लीन है भाई, जिलेटिन पेपर सब कचरे के डब्बे में, हमारा रूम एकदम सेटलमेंट साफ, एकदम कुछ टेंशन नहीं। हम लोग का ग्रुप ही डेंजरस था भाई। फिर एक ट्रिप था हमारा मनाली के लिए। मैंने बोला भाई अभी इधर तो अलग सीन चाहिए हम लोग को चाहिए भाई अलग अच्छी दारू, मिलिट्री की दारू चाहिए, मेरे को नॉर्मल दारू नहीं चाहिए, मिलिट्री की दारू। मैंने मिलिट्री के ओल्ड बॉन्ग के 2 खंबे ले लिए एंड आई गॉट अ सेपरेट जैकेट सो दैट नोबडी चेक्स। हाँ तूने दिखाया था जैकेट, इतने पॉकेट्स थे ना उसमें, इतना मतलब मैं सब सेटलमेंट करके गया हूँ अपना। मैंने ढूंढा भाई, मैंने जैकेट के लिए ऑलमोस्ट 10-15 दिन लिए। वाह रिग का जैकेट खरीदा मैंने बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ पॉकेट्स। यहाँ से दारू लेके गया घंटा कैसे समझा, अक्खा खंबे के बॉटल्स ही लेके गया हूँ मैं, इतना बेंच हिम्मत, पूरे बॉटल्स लेके गया हूँ। ट्रेन में गए, देयर इज अनदर फ्रेंड आकाश गांगुर्डे नाम है उसका, ठीक है, प्रसाद गांगुर्डे, सॉरी आकाश गांगुर्डे नाम है। आकाश गांगुर्डे इज अनदर फ्रेंड, ही रिसेंटली पास्ड अवे इन कोविड भाई। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स भाई। तो प्रसाद था, प्रसाद बोलता है प्रवीण तेरे पास दारू है ना, खोल। बोला खोलता हूँ भाई, नीट मारेंगे बेंचो। हमने खोला दारू का बॉटल, नीट मारना चालू किया। मैंने एक खंबा लिया, एक खंबे में का मैंने 1 क्वार्टर मारा, उसने 1 क्वार्टर मारा। अब उसका मैं दूसरे ग्रुप में चला गया, वहाँ पे थोड़ा और दारू पिया। फिर मैं जब गांगुर्डे में वापस पकड़ लिया, गांगुर्डे बोलता है भाई चल दारू निकाले, एक और। उसने आधा खंबा बेंचो और नीट मारा और मैं भंड हो गया। बोले मैंने दारू पी ली बहुत अपनी, नीट मार। मेरा एक भाई, मैं दारू पीता हूँ सो जाता हूँ, बेस्ट द ओनली थिंग आई कैन डू। दारू पीऊंगा, खा लूंगा और सो जाऊंगा, मतलब अनकॉन्शियस, इतना कि मेरे को नेक्स्ट डे लगेगा मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ पे पहुंचा। ऐसा वाला भाई। और अगर बहुत ही ज्यादा पीना तो नींद में उल्टी करूंगा, दैट विल हैपन बट नॉट, हाँ नींद में उल्टी करूंगा भाई मैं, सोया हूँ भाई, सोया हूँ, मुझसे उल्टी गिर रहा है। दिस विल हैपन once or twice, it happened long back when I was in college, okay, not now भाई। it's been a very long time like I haven't drank। मैं बस बियर पी सकता हूँ भाई, मतलब मेरे में हिम्मत ही नहीं है वो हैंगओवर, आई कांट टॉलरेट इट। एंड एवरीबडी हैज़ अ फेज इन द लाइफ जिसमें ये चीज़ें होती हैं उनके साथ, एंड यू कम आउट ऑफ दैट फेज एंड यू जस्ट स्टार्ट डूइंग इट व्हाटएवर यू वांट टू डू। तो अब रात को ये हुआ कि गांगुड़े ना भाई फुल बीइंग ह्यूमन का जैकेट पहन के, एकदम इतना ह्यूज, इतना बड़ा जैकेट भाई, 15,000 का जैकेट था उसका भाई, जो बहुत पैसा वाला भूसड़ी का। और वो तो अलग दारू लेके आया था, वो ना 20-25 हज़ार रुपये खर्चा करने के लिए आता था। आईवी में 4-5 दिन में 20-25 हज़ार रुपये सिर्फ उसको उड़ाना ऐसी। अब ओमकार, मी एंड गांगुर्डे, हम लोग 3 जन थे। गांगुर्डे वाज अ वेरी जूनियर, ही वाज इन फर्स्ट ईयर, वी वर इन थर्ड ईयर। गांगुर्डे ने बेंचो उल्टी कर दिया, ट्रेन उल्टी, बेंचो ट्रेन में पूरा उल्टी। मैं सोया हूँ, मैं तीसरे फ्लोर पे सोया हूँ भाई, एक हाथ भी नीचे मेरा कुछ तो, ये मेरे को लोग बोल रहे थे मुंह से थूक भी निकल रहा है भाई, ऐसा सोया है। और सब लोग बेंचो, जब गांगुर्डे ने उल्टी किया ना, सबको समझ गया प्रवीण है भूसड़ी का, प्रवीण इज द रीजन, प्रवीण को ढूंढो। प्रवीण टीचर्स के एक कंपार्टमेंट पीछे कोई पैसेंजर भलते लोग, उनके बीच में सोया है। कोई मेरे को ढूंढ नहीं पाया भाई, कोई ढूंढ नहीं पाया। मैम लोग को स्मेल आने लग गया गंदा भाई। ओमकार वाज एट रेस्क्यू। ओमकार ने मारा जो उसका जैकेट निकाला, उसके जैकेट से उसकी पूरी उल्टी पोछी, पूरा उल्टी पोछा भाई। उधर मजबूत परफ्यूम मारा, बहुत परफ्यूम मारा, पूरा बॉटल ही खाली कर दिया। हाँ, और उसका वो जैकेट ही बाथरूम में रख दिया, उसने बेसिन में रख दिया। कांड मारा वो बेंचोद, इस उल्टी के जैकेट को बाथरूम में, कोई झाट बाथरूम में जा नहीं रहा है बेंचोद। मैं अगले दिन सुबह उठा, बेंचो सर दुख रहा है, परफ्यूम का गंदा बास मार रहा है इतना। और वो वोमिट का भी बात। और ये मुझे लगता है 3-3:30-4 बजे के आसपास में उठ गया था, ये 10 बजे हो गया था भाई, 10 बजे सो चुका हूँ मैं, 3-3:30 बजे उठ गया। 3-3:30 बजे तक हलचल चल रही, टीचर्स लोग देख रहे हैं जो क्या चूतियागिरी चल रहा है, इतना परफ्यूम का स्मेल कैसे आ रहा है। पूरा हमारा बोगी कंप्लेन कर रहा है कि इधर गंदा परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, इतना परफ्यूम कौन मारता है करके। और हमने पूरा परफ्यूम का बॉटल खाली कर दिया बेंचो, दारू का झाट पता नहीं बेंचो। गांगुर्डे अगले दिन उठा बेंचो, गांगुर्डे के टी शर्ट पे भी दारू के अपना उल्टी के स्टेन्स हैं। गांगुर्डे को सब लोगों ने छुपा दिया, गांगुर्डे सोया बोला। गांगुर्डे अगले दिन उठता है, वहाँ से जैकेट भोसड़ी के, तू गांडू जो किया ना रात को बेंचो, तेरा जैकेट मेरे बाथरूम में पड़ा है, वो तो फेंकून टाक, मैंने ना पाया तो जैकेट था, बास आ रहा करके उससे। ओमकार ने बेंचो बेचारे ने उधर लेके गया, मनाली पहुंचा, उस जैकेट को पिशी में पैक करके, उसने ड्राई क्लीन करवाया उसका जैकेट, उसको जैकेट वापस दिया उसको अच्छे से करके। जो 15-20 हज़ार का जैकेट था बेंचो, दैट उतना पहले 10 साल पहले। उधर पहुंचा मनाली ठंडी भाई, आई वांटेड टू ड्रिंक। मैं तो सोबर था भाई, मैंने तो कुछ नहीं, मेरे साथ जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, आई वाज वेरी फाइन। मैं बहुत एक्साइटेड था भाई ब्रांडी पीने के लिए, मेरे को ब्रांडी पीना था, जिंदगी में ब्रांडी नहीं पी थी। जैसे होटल पहुंचा भाई, एग्जैक्ट जिस होटल में, कैन यू इमेजिन, यू आर इन आईवी, वाह आई गॉट इट, तुम्हारा होटल है ऊपर और नीचे दारू की दुकान, एग्जैक्ट होटल के नीचे काला है जो दारू का है। मैं नीचे गया, जैसे ऊपर बैग रखा, नीचे आया, ब्रांडी का खंबा लिया, बैग में डाला, ऊपर गया। उसी रात को अक्खा ब्रांडी, मेरे दोस्त बाहर है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए था भाई, आई वांटेड नथिंग एल्स। बातें करो, मैं और मेरा दोस्त बैठे, दीपक नाम था उसका। मैंने ब्रांडी खोला, उसने रम खोला,
मैंने ब्रांडी का एक खंबा नीट मारा भाई वाह 1 घंटे के अंदर पूरा खंबा एक खंबा नीट भाई यू आस्क माय फ्रेंड भाई हाउ आई यूज्ड टू ड्रिंक यू वोंट बिलीव मैं कितना अकेला मैं अकेला और एक घंटे में करता था भाई ये काम एक घंटा खत्म दारू खत्म और मैं उधर काउच पे और इट वाज अ 5 स्टार होटल आई गेस 4-5 स्टार होटल था मैं वहाँ जो काउच पे लेट गया पलटी हो गया मेरे बाजू में सब लोग बात कर रहे हैं मुझे सब पता चल रहा है कि बातें चल रही है आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन लोग अभी सोने पे आ रहे थे मतलब ऑलमोस्ट सोने पे आ रहे थे मैं उठा बीच में इन्होंने वो नेक्स्ट डे बताया तू उठा लौड़े और तू बेंचो तू बाथरूम ढूंढने के लिए बाहर गया तो लॉबी में मूत रहा है और बोलता लौड़े तू इतना मूता है ना इतना मूता है बेंचो कि ऐसा लग रहा है बेंचो कुछ लीक हो रहा है फर्स्ट लीक हो रही है मैं तो मूत दिया भाई आई वाज फकिंग पीइंग इन देयर मैंने इतना सुसु कर दिया भाई और तू इज्जत से बोलता है तूने मूता तू पैंट अंदर किया तू दरवाजा खोल के अंदर आया हम लोग सब तेरे बाजू में खड़े हैं भाई पूरा लॉबी गीला है भोसड़ी फिर तू अंदर आके सोया बोलता है दिस इज व्हाट कॉलेज मतलब अब ये चीज वो सब लोग अब ऑब्वियसली मैं भी याद करता रहूंगा सम ऑफ द कन्वर्सेशंस आर लाइक आई ची गॉड फक व्हाई दिस हैपेंड बट देन दिस द व्हाट इफ्स आर ऑलवेज part of life, man. व्हाट इफ्स आर ऑलवेज यू नो बैड लाइक व्हाट इफ आई नो है ना वो कभी जिंदगी में चाहिए नहीं व्हाट इफ ऐसा होता तो कर लेना सब कर लो भाई करना था, कर लिया कर लो तू कौन से कॉलेज में था बिकॉज़ आई नेवर यूज्ड टू फियर अबाउट द नेक्स्ट डे का हैंगओवर ना वो चीज का डर ही नहीं था कभी देन लेटर रिसेंटली मतलब 5-6 साल पहले जब मैंने एक बार दारू पी थी रात को लाइक मैं दिन में तो कभी मैंने आज तक बहुत दिनों में आई डोंट रिमेंबर कि मैंने लास्ट दिन में दारू कब पी थी रात को दारू पी थी दारू और मैं अगले दिन सुबह का हैंगओवर झेला नहीं गया भाई आई फेल्ट लाइक इट्स अ बैड डे एंड आई डोंट वांट टू डू इट आई स्टार्ट योर डे लाइक दैट फिर इट्स वियर्ड मेरे को चाहिए नहीं आई डोंट वांट दैट हैंगओवर आई कैन ड्रिंक अ फ्यू बियर्स बट आई कांट ड्रिंक दारू आई डोंट वांट टू ड्रिंक दारू लाइक आई माइट ड्रिंक वंस इन अ व्हाइल वंस इन अ फ्यू मंथ्स बट शायद दारू ना पीऊँ भाई मैं एंड दैट्स हाउ आई गॉट दैट डिसिप्लिन इन माई लाइफ रिलेटेड टू वर्कआउट तो कमिंग बैक अगेन टू द टॉपिक जब यू नो हाँ तो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन वाला फेस उसके बाद ये कॉलेज वाला सीन आई सो मच ओपन गॉट सो ओपन इनटू एवरीथिंग और फिर मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की yes I started my coaching classes where I had no money. I got investment from a lot of people, my friends, my uncles, not uncle. He's just a known uncle to me and he helped me a lot. He has a logistics company in here, Trident Logistics. उनका logistics है. It's one of the biggest logistics like I know in India. तो उन्होंने help किया. He helped me into this like financing it and he was also a part partner of my coaching classes. तो वो coaching classes I started at the age of 20. तो ये कोविड के टाइम पे वो कोचिंग क्लासेस भी बंद होने की कगार में आ गए थे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 सीन्स एंड एवरीथिंग तुम्हारे ऊपर डेट्स आ गए बहुत लोन्स हो गए हैं और तुम वो मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो वो फेज़ था मेरा जिसमें मैं फिटनेस में और ज़्यादा अच्छे से आ पाया बिकॉज आई वॉज सीइंग माई सेल्फ फॉर एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग दिस आई नीड यू गाइज टू अंडरस्टैंड इट कि अगर तुम्हारा फिजिकली अपीयरेंस अच्छा नहीं है तुम अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे हमेशा तुम्हें खुद को देख के अगर अच्छा लग रहा नहीं है तो तुम प्रेजेंटेशन में उतने कॉन्फिडेंटली चीज़ें नहीं बोल पाओगे एंड इफ़ यू गेट फिट इट्स अ डेली डोपामीन शॉट आई टेल यू समथिंग गाइज यू नो पीपल से कि वर्कआउट तुम्हारी लाइफ चेंज कर देता है तुमको फ्रेश फील कराता है डू यू नो देयर आर 4 ब्रेन केमिकल्स एंडोरफिन्स डोपामीन सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन सुना है मैंने ठीक है एंडोरफिन्स आर नेचुरल पेन किलर्स serotonin is the stress reliever you can say it's a natural stress reliever you can say oxytocin is a love chemical you can say it's a love bonding not that love Achha. not just that love the bonding this is love oxytocin yeah serotonin Serotonin, dopamine now dopamine is everybody Obviously, knows obviously. about the dopamine it's so well marketed now everybody knows कि dopamine is the motivation or goal hitting chemical ये चारों chemicals है ना you easily can hit all these chemicals in the gym the natural painkillers yes endorphins you get in the gym you try to fix yourself you kill your pain you feel good you feel happy serotonin release होता है you hit something you hit a goal dopamine hit होता है dopamine तुम्हारे serotonin को hit करता है when you guys are working out together few of people are us working out together हम लोग देखते हैं भाई fuck यार मार दिया तूने ओ भाई fuck मजा आया मैंने सोचा नहीं था you bond you hug each other you clap you give a high five that is what it is that is oxytocin again these 4 chemicals are triggered so well in a good workout
कि तुम्हारा अल्टीमेट हैप्पीनेस जिम में बहुत अच्छे से आता है. This is the more biological side or the scientific side to why gym can give you happiness. तो मैं ना जब प्रेजेंटेशन देता था ना, मतलब आई हैव गिवन प्रेजेंटेशंस अमंग 300-400 पीपल आल्सो. आई सैट बिसाइड्स माय ऑथर्स, मेरे क्लास के बुक्स के जो ऑथर्स थे उनके बाजू में बैठ के मैंने प्रेजेंटेशंस दिए. और उनके बीच में मैं तालियां ले रहा हूँ, इतनी तालियां जो मतलब आई फेल्ट इट लाइक इट्स सो गुड. स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो सुन रहे हैं मुझे मेरी बातें, आई मीन ये सारा कॉन्फिडेंस, लाइक पीपल से कि तू कोचिंग क्लासेस करता था, इतने साल तूने वेस्ट कर रहे थे, अगर फिटनेस में आना था. बट डूड, इफ आई वाज नॉट इनटू क्लासेस, मैं सीखना, एक्सप्रेस करना, समझाना, रिसर्च करना कैसे सीखता. एग्जैक्टली. जो आज मैं चीज़ कर रहा हूँ मैं उस दिन के वजह से हूँ. आई वाज जस्ट हियर बिकॉज ऑफ दैट. एंड आई नेवर गेट दैट एसेंस और फीलिंग ऑफ how failure can hit me or how failure can hit me or how in what possible ways I can, you know, hit the rock bottom or anything, because it's not that I have seen, a lot of people have seen that life जिसमें वो लोग रास्ते पे भी रहे. I still had those times जहाँ पे ना मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुई, लाइट नहीं हुई करती, बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने को. 300 रुपये इलेक्ट्रिसिटी भरने को पैसे नहीं है, 200 रुपये मेंटेनेंस भरने के लिए पैसे नहीं है. आई यूज्ड टू स्लीप ऑन माई टेरेस. मैं टेरेस पे अपना गद्दा लेके जाता था और टेरेस का दरवाज़ा खुलता था. माई वॉचमैन यूज्ड टू गिव मी द टेरेस का चाबी. मैं जाता था वहाँ पे और सो जाता था. ओडोमॉस आता था, पता है तुमको? तुमको पता है मच्छर कान में भिन भिनते एकदम जोर से और वो तुम्हारी नींद डिस्टर्ब करते हैं. मैं ओडोमॉस कान पे लगाता था. अच्छा गावार. आई यूज्ड टू कीप द 10 रुपये वाला ओडोमॉस. दैट वाज अनदर इन्वेस्टमेंट. 10 रुपये वाला इन्वेस्टमेंट कान में ओडोमॉस लगाने के लिए, हाथ पे लगाने के लिए, क्योंकि हाथ अनकवर्ड रहेंगे. सुबह उठता था ना, मेरे हाथ पे पूरे रेड रहते थे. फिर भी ओडोमॉस से थोड़े कम रहते थे, बट रहते थे. आई यूज्ड टू स्लीप इट ऑन माई टेरेस. जबकि टेरेस पे ऐसी बातें होती थी ना कि टेरेस पे ये है, टेरेस पे केला. भाई वो चीज़ का भूत का डर क्यों नहीं था? क्योंकि हालातों ने भूत के डर को भी खत्म कर दिया था साला. तो कभी कभी मेरे यहाँ के गणपति मंदिर, मतलब कुछ पुलिस वाले थे वो टाइम पे, मुझे अच्छे से जान चुके थे. ये बेंचो कभी भी स्टेशन पे दिखता है सोया हुआ, कभी गणपति मंदिर में सोया हुआ बेंचो ना, ऐसे होता था. बिकॉज रात को नींद नहीं आती थी भाई. मतलब इनिशियली तो आई यूज्ड टू सफ़र फ्रॉम माई मदर्स मेमोरीज, इतना कि मैं रात को उठ के सुबह उठ के किचन में आता था मम्मी को देखने के लिए. fuck. Is my mom there or not? मतलब इतना ज़्यादा था. मतलब those memories were so strong कि जब मैं बीमार पड़ता था मुझे याद आता था कि मेरी मम्मी अगर रहती तो मेरे लिए क्या क्या करती थी. जीरा वाला चीज़ करती थी, जीरा वाली चाय पिलाती थी, रात भर अपने लैप पे सुलाती थी. एंड आई यूज्ड टू क्राई होल नाइट जब मैं बीमार पड़ता था. इसलिए मुझे आज भी बीमार पड़ना नहीं पसंद भाई. आई स्टिल नो द पीपल हु हैव पेरेंट्स ना, वो लोग बीमार पड़ते हैं ना, दे डोंट केयर अबाउट देमसेल्व्स. उन लोगों को पता है भाई डॉक्टर के पास जाना है, मम्मी पापा बोलेंगे 4 बार, उसके डॉक्टर के पास जाएंगे. मेरे को पता है मैं बीमार पड़ रहा हूँ ना, मुझे आदत लग चुकी है, बीमार पड़ने वाला हूँ. आई विजिट द डॉक्टर, आई टेक माई मेडिसिन वेल, एकदम प्रॉपरली लूँगा, 2 दिन में ठीक हो जाऊँगा एंड आई गेट बैक टू वर्क. आई डोंट लाइक फॉलिंग सिक एट ऑल. एवरीबडी फॉल सिक, आई डोंट लाइक फॉलिंग सिक. और ये चीज़ कि तुमको तुम्हारा ध्यान खुद देना है. तुम रो, तुमको देख के तुमको देखने कोई नहीं आने वाला है. मैं सोचो ना, रो रहा हूँ, यू आर सिटिंग इन अ रूम, यू फीलिंग बैड अबाउट समथिंग, मे बी बिकॉज ऑफ योर गर्लफ्रेंड, बिकॉज ऑफ योर फैमिली, बिकॉज ऑफ एनीबडी हु यू केयर अबाउट इन योर लाइफ. तो तुम एक रूम में तुम रो रहे हो, तुम 4 घंटे रोगे, उसके बाद क्या? शांत क्यों होते पता तुम? बिकॉज कंसोल करने के लिए कोई नहीं है. fuck dude. Very true. एंड दैट्स हाउ आई ग्रू अप. इस फेस में मैंने अपने साल निकाले हैं. 14 साल से लेके ये 29-30 साल तक मैं अपने इस फेस में मैंने निकाले. तो कोई मर गया है तो मुझे मर गया, ये फीलिंग नहीं आती. क्योंकि अगर वो 17 साल की उम्र में कोई मरता ना तो मुझे लगता है यार बुरा लग रहा है. बुरा ही नहीं लगता यार. बुरा मतलब बुरा और अच्छा लगने से चीज़ ही नहीं. लाइक पीपल आर गोइंग टू डाई, पीपल आर गोइंग टू लीव यू, पीपल आर गोइंग टू लाई, पीपल आर गोइंग टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स. बट पीपल आर हु पीपल आर. They stay, they live, they go. It's I just never that. said this about you, but then Pravin is someone जिसको like ये ऐसा मैंने बोलना नहीं चाहिए उसके सामने, बट कुणाल मैं तुझे बोलूँगा. I just ignore कि प्रवीण यहाँ पे सामने बैठा है. But ये like probably is the first person that I met in my life जिसे हर तरीके का पेन समझ में आता है. हाँ. उसे वो फील भी करता है and he knows कि like what the person is going through सामने वाला, and he still like वो खुद को संभाल लेता है वो चीज़ से. तो समझ रहे हो वो कितना कॉम्प्लेक्स है. I know. लाइक किसी को कुछ होता है तो वो फील होके वो रो देता है. किसी लोगों को तो कुछ बहनचोद समझ में ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है. उनको लगता है कि ये चूतिया है सामने वाला.
ये बंदे को वो हर चीज़ लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि रिलेट होता बिकॉज ऑब्वियसली उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, लाइक वो कहाँ से आया, कहाँ पे आज पहुँचा है वगैरह वगैरह, बट इस बंदे को सब समझ में आता है। आई थिंक मैं इस बंदे को लाइक मेरा जो अभी जैसे जितना प्रवीण मेरे क्लोज है उतना मेरे लाइफ में सिर्फ एक ही दोस्त क्लोज है, एक यश करके एक दोस्त है, रोएगा नहीं बहनचोद बट इट्स लाइक कि उस बंदे को जितना समझाना पड़ता है उसका हाफ मैं इस बंदे को समझाता हूँ एंड इस चूतिए को सब समझ में आ जाता है। अब समझ रहे हो लाइक जब भी इसने कभी कभी ये दिल से ओपन अप हो भी जाता है उसका, मैं स्पेसिफाई नहीं करूँगा लाइक क्या चीज़ है बिकॉज बट क्योंकि भोसड़ी वाले हो कुछ लोग, तुम लोग की क्या करते हो, तुम लोग की जो इमोशनल चीज़ है ना उसके ऊपर तुम लोग टारगेट करते हो, बट मैं ये चीज़ बोलूँगा कि ये सब होने के बाद यहाँ पे पहुँचना, ये लाइक मेंटालिटी लेके वो बहुत ताकत चाहिए भाई। हाँ लाइक भाई मैंने देखा है कि लोग कबीर सिंह बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, डाकू बन जाते हैं, मैं दुनिया की गांड मार दूंगा, खराब कर दूंगा, ये वो, ब्रो नहीं, दिस गाय स्टिल enters wherever he goes and he tries to help people instead of whatever that has happened with him. Like एक रहता है इमोशनली, तू देख मत मेरे को भाई, मेरे को उसको देखना भी नहीं है एक रहता है बीइंग इमोशनल मैच्योर्ड, एक रहता है बीइंग प्रैक्टिकल, एक रहता है लाइक अंडरस्टैंडिंग द न्यू जनरेशन, एक रहता है कि आप खुद ओल्ड जनरेशन हो। इस बंदे में सारे कॉम्पोनेंट्स है। इस चूते के ऊपर एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बन सकती है, मूवी बनने से रही क्योंकि मूवी बहुत छोटी बनेगी, स्वीट लाइक मतलब 2 घंटे में नहीं होगी वो मूवी। इस बंदे के ऊपर एक सीरीज बन सकती है प्रोबेबली, आई डोंट नो, लाइक बीइंग अ थर्ड पर्सन आप लोग जो देख रहे हो आपको ये बहुत लाइक बाउंसर है ये बंदा, बट साला ये अपने लिए छूते हैं। हाँ मतलब वो इट विल टेक टाइम। considering the situation, take time. see considering the situation, I'll tell you, ऐसे मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिचुएशन से बाहर निकल के ये चीज़ कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट। It's easy to say. I'll tell you how it is a mindset. I never used to love smoking. मेरे को कोई मेरे सामने स्मोक कर रहा है, मुझे धुएं की एलर्जी थी भाई, पसंद नहीं था मुझे। आई एम ग्लैड वो था जिसकी वजह से मुझे कभी नहीं पसंद। माई डैड यूज्ड टू कॉल मी नास्तिक बिकॉज मेरे को अगरबत्ती का स्मेल नहीं पसंद था। मेरा बाप बोलता साले तू नास्तिक है बेंचोद, तेरे को अगरबत्ती का खुशबू पसंद नहीं है, तू शैतान है, शैतान, तू शैतान पैदा हुआ। और माई डैड वाज लाइक अ पर्सन जो एकदम पंडित वाला पर्सन था, काइंड ऑफ पर्सन था ना, पंचांग वंचांग पढ़ता था बंदा, हर सुबह पूजा करेगा, हर शाम को पूजा करेगा, हर दिन भर मेरे घर पे घंटियाँ बज रही हैं और मुझे उस स्मेल से तकलीफ होती थी। आई एम ग्लैड वो तकलीफ मुझे धुएं से थी, नहीं तो मैं आज शायद नशेड़ी होता बहुत बड़ा। I was so much into observing people and observing things and evaluating all these things because अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कॉलेज टाइम में जो सबको दारू और पीने की आदत लगती, मैं उस चीज़ में घुस चुका होता। अगर मैंने मेरे बाप को ऑब्जर्व नहीं किया होता कि वो इतना दारू पी के अपनी हेल्थ ख़राब करके बैठा है, तो शायद मेरी ऑब्जर्वेशन अगर नहीं होती तो शायद मैं भी दारू पीता रहता आज तक, और मैं कभी बंद नहीं करता। माई फ्रेंड हु वाज स्टेइंग राइट विथ मी, मेरे घर पे पेइंग गेस्ट की तरह रहता था, he used to do cocaine in front of me, meth, MD in front of me. I know all these names because I've seen people doing it in front of me. उसने एक ग्लास टेबल खरीदा था उस चीज़ के लिए घर पे, बहुत स्पेसिफिक। I've seen him coming home और ऐसे बातें कर रहा है, प्रवीण सुनना, और मैं उसको एक बार बोल दिया भाई तू मर जाएगा ना ऐसे करेगा तो, और वो इतना पागल हो गया उसने अपने दोस्त को कॉल किया, वो भी हाई है, एंड दैट गाय इज कमिंग इन, इज कन्फ्रंटिंग हिम, इज टेलिंग मी भाई जब इंसान हाई रहता है ना ये सब बातें नहीं करनी होती है, उसको एकदम अच्छा ट्रिप देना है, गुड ट्रिप देना है, बैड ट्रिप नहीं देना भाई, गुड ट्रिप बैड ट्रिप, ये शब्द मेरे को तब पता चले भाई। बीटी भाई, बीटी मत दे ब्रो। तो ऑल दीस थिंग्स वर क्रेजी भाई। और आई हैव सीन सिचुएशंस रिलेटेड टू फ्रेंड्स आल्सो इन माय लाइफ, लाइक द सिचुएशंस दैट यू गाइस नो, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट जो हमने अभी लाइफ लेटली में देखा है, या हमने आजकल में देखा है, या साल भर पहले 2 साल में देखा है। देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन हु आई मेट इन द कॉल सेंटर। आई यूज्ड टू वर्क व्हेन आई वाज जस्ट 16-17, आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर, फेक पैन कार्ड बना के। तो वहाँ पे एक फ्रेंड बना था, मैंने 6 महीने काम किया था वहाँ पे, एंड आई डोंट वांट टू नेम दैट गाय बिकॉज वो भी अपने सिचुएशंस और हालातों में उसने कुछ चीज़ें करी होंगी। तो उसने बोला भाई मेरे प्रवीण, मेरे घर का ना रिनोवेशन चल रहा है और मुझे ना 10-15 दिन के लिए घर चाहिए रहने के लिए। बोला आजा भाई मेरे घर पे आजा।
आई मेड हिम मेट अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स को मिलाया मैंने, मयूर को मिलाया मैंने, विशाल से मिलाया, ओमकार से मिलाया, विजय से मिलाया, विजय वाज अनदर फ्रेंड ऑफ माइन, जिसने मुझे गाड़ी चलाने सिखाया, हिज विजय, जिसने मुझे पहली बार दारू पीना सिखाया, हिज विजय, जिसने मुझे जिंदगी के सब अच्छे काम सिखाया, हिज विजय, गुड वर्क, बैड थिंग्स एंड एवरीथिंग, लाइक ही इज अ वेरी ओल्डर गाय बट ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, स्टिल अ गुड फ्रेंड, बट या विजय ने सिखाया मुझे। तो हम लोग सब क्रिकेट खेलते थे रात को, बैक इन द टाइम वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, हम लोग एक रोड पे आते थे, वहाँ पे क्रिकेट खेलते थे। तो दैट गाय हु वाज अ फ्रेंड जो कॉल सेंटर में मिला था, वो भी आया हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए, अच्छा क्रिकेट खेलता था, बॉलिंग वॉलिंग भी बहुत अच्छा डालता था, पतलू सा था एकदम। तो एक रात हम लोग तो ऐसे करते रहते थे भाई, हमेशा हम लोग का था, हम लोग रात को क्रिकेट खेलेंगे, दारू पी के सो जाएंगे। तो एक रात ऐसी, और मेरा घर ऐसा था ना, उस पर कड़ी लगती थी सिर्फ मेरा कोई भी दोस्त कभी भी उस घर पे आ सकता है। लोग मैं बोलते थे ये शनि शिग्नापुर है तेरा घर, इस घर पे कभी ताला नहीं लग सकता, इस घर पे कड़ी रहती है। कोई बोलता है प्रवीण किधर घर पे रहेगा, लाइक पीपल यूज्ड टू, लोगों को मुझसे काम था, कॉल नहीं कर सकते, मेरे पास फोन नहीं था ना, प्रवीण को ढूंढते थे, प्रवीण को कोई कॉल नहीं कर सकता है, बिकॉज प्रवीण इज नॉट अवेलेबल ऑन डिमांड, ही विल ओनली मीट यू व्हेन ही वांट्स टू मीट। ये आज भी वैसा ही मेरे को ये आज भी वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। मेरे को लोगों से मिलना होता था, मेरे को सबका नंबर याद था, माय फ्रेंड कमलेश, माय फ्रेंड विशाल, माय फ्रेंड ओमकार, एवरीबॉडी आई यूज्ड टू, हर एक का नंबर मेरे को याद था, मैं नंबर याद रखता था, बिकॉज तब से मुझे नंबर याद रखने की आदत थी। तो एक रात क्या हुआ, हम लोग सब ना ऐसे सोते थे, 6-7 जन ऐसे लाइन में सोए हुए मेरे घर पे, मेरे एक दोस्त की सोने की चेन गायब होती गले से, आइज होली, और हम अगले दिन ढूंढ रहे हैं भाई, सोने की चेन गायब हो गई, अब करे क्या, फक भाई, अब तो ये तो गलत सिचुएशन है, मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं है। लाइक विजय नेवर ब्लेम्ड मी कि प्रवीण ने किया होगा कुछ ऐसा, बट देन ही वाज लाइक कुछ तो हुआ है भाई, एंड द ओनली गाय हु वाज देयर दैट वाज दैट गाय, जो मेरा दोस्त था जो कॉल सेंटर में मिला था। मैं इतना अच्छा सोच के उसको घर पे रखा मैंने, और हम सोच रहे भाई इसने ये किया, बट देन हमें पता चला कि इसने नहीं किया करके। हमने पूछा, उसको भी पूछा, हमने सबको पूछा, हम एक दूसरे में सबको पूछा, तो फाइनली वी कंक्लूडेड ये गिर गई होगी कहीं पे चेन, मतलब घर पे ही कहीं गिरी होगी, और बाहर से कोई आके लेके गया कि हम कड़ी नहीं लगाते शायद से। कुछ दिनों के बाद वी वर प्लेइंग, और हम लोग क्रिकेट खेलते टाइम पे मेरा और मयूर का झगड़ा होता है, मतलब मारा मारी तक झगड़ा भाई, और फिर भी हम लोग घर पे आके साथ में सो गए। उस रात को मयूर की चेन गायब हो गई, और हमने फाइनली ऐसे ही हमने अंदाज़ा लगाया, चीज़ें थोड़ी पीछे से रिलेट करी, हमें श्योर हो गए, हम लोग अजम्पशन पे श्योर हो गए कि ये जो बंदा हमारे पास अभी आया, ये मेरा दोस्त कॉल सेंटर वाला, इसने पक्का चोरी किया। हमने ऑब्वियस करके, पुलिस हमारे कुछ पहचान वाले थे, हम लोग ने उनसे बात करके, हम लोग ने इसको पहले ना बोला कि अब तो पुलिस वाले के पास लेके जाएंगे सीधा, ये पुलिस वाला इसके साथ बात कर ले करके। उसने बात किया, उसने पता नहीं क्या क्या गाली दी, इसकी फट गई भाई, गांड फट गई। हम लोग ने सीधा इस बंदे की गांड फट गई, पुलिस वाले ने कॉल कर, हमने उसको 2-4 चमाट भी मार दिया भाई, मेरे में से एक बंदे ने चमाट मार दिया इसको, इसने मुंह खोला, उसने किया था, यस। और अब उसने बोला ये ज्वेलर के पास उसकी चेन है करके, कोई गंसोली में कोई तो ज्वेलर था, उसके बाद उसने चेन रखी थी। अब उसने वो चेन तो उसने बेच दी, ज्वेलर ने भी तोड़ करके खत्म कर दिया। अब वो ज्वेलर का कॉस्ट, उसके गांव से पेरेंट्स आए जो गरीब फार्मर्स थे भाई, उन्होंने आके पे किया। वी टोल्ड देम अबाउट एवरीथिंग कि ऐसा ऐसा हुआ करके, कुछ भी चीज़ में किया होगा इसने, बट ही डिड इट। ये अगर पैसे के लिए मांगता तो शायद लोग दो भी देते, फ्रेंड्स में हेल्प कर सकते थे। देन अब बात आ रही थी दूसरी चेन की, मयूर की चेन की। अब मयूर की चेन कहाँ गई है? मयूर की चेन वाज स्टिल एट माय प्लेस। ये कर्टन्स के रॉड्स होते हैं ना, उसके अंदर छुपा के रखा था उसने। एंड द प्लान वाज अभी और कुछ दिन निकलते, ये बात सब सेटल होती, शांत हो जाएगा, और वो चेन निकलता और वो लेके जाता, बेच देता उस चीज़ को। अरे यार स्मार्ट दो। तो दिस वाज द फ्रेंड्स वाला साइड, जो चीज़ में मैं रहा था। तो जजिंग अ पर्सन, yes definitely it's always going to be difficult, but you never know what's going to be in someone's mind. So it's just what I thought कि if I'm very clear what I want to do, what I want from that person, what I'm going to give that person back in good faith, तो तुम्हारे लिए कोई उस चीज़ के आगे भी नहीं बढ़ेगा और तुम उस चीज़ के आगे एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे और चीज़ें सही से चलेंगी। I feel you should and that never, is very that you know you should never help a person with an expectation कि वो तुम्हें कुछ देगा वापस। Right. And that turned out very well because people started filtering out from my life. Yeah. Who are not expecting anything, it's good with them. I'm not expecting from them, it's good with them. The place where expectations and responsibilities come into picture और responsibilities handle नहीं हो पाती, expectations फालतू में बढ़ते हैं, वहाँ पे लोग खुद side हो जाते हैं भाई. And that has happened lately, yeah, you can say for a while now. ये ऐसी तरीके से हो रहा है. And yes,
It's been like that. Like, what do you guys want me to say now? है ना? क्या बोले No. Later when I started getting into fitness, अब fitness वाली बात भी करते हैं ना हम लोग. If you want to talk डीप हो about जाता है, थोड़ा ये हो जाता है. Rishi is still there. Rishi is like getting. I don't know if Rishi is getting entertained or not. What expectations? Rishi is like good at the whole production side. I hope Rishi. Audio shiz, Yeah, that is editing shiz. And maybe Rishi will be expecting the same thing from us. Ki you guys are addressing the audience properly. Or not. Yeah. Okay, fine. Fine with that part. That part will come in the very near future, you can say. Fitness में कैसे एंटर हुआ, ठीक है? जब भाई मैं एकदम मोटा हो गया था, मतलब आज लाइक 91-92 kgs पहुंच गया था, 37 इंचेस की वेस्ट हो गई थी, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक एम आई डूइंग, लाइक मेरे को This was quite recent ना, but 2018, अच्छा हाँ ठीक है, 6 years back. क्योंकि अच्छी बॉडी से वापस ऐसा मोटा हो जाना, गाल वाल ऐसे एकदम ऐसे फुल जाना, वो तो तेरे अभी भी है. नॉट दैट, यू माइट हैव नॉट, तुम देखोगे नहीं भाई अगर वो चीज़ तुमने देखा. इसने फोटोज दिखाए. ही यूज्ड टू बी अ वो प्रोफेसर जो सिखाते सिखाते प्रोटीन शेक पी रहा है, वो ये प्रोफेसर था. इट ट्रिगर्ड मी सो मच कि मैं अगर अच्छा दिखूंगा तो चीज़ें अच्छी होंगी, मैं अगर अच्छा दिखूंगा तो लोग मुझे सुनेंगे, लोग मुझे सुनना चाहेंगे, मुझे सुनने के लिए आएंगे क्लास में. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन आई गॉट इनटू गुड शेप. आई हैव सीन पीपल जो रास्ते पे रुक के देख रहे हैं और बोल रहे हैं भाई इसकी बॉडी देख. Yeah. And it's just not the body that people go mad about. It's just the whole personality that you carry. The way you dress, the way you talk, the way you look, the way you smile, and every other thing. It's just how you are. That is what attracts people. It's not the best body with 6-pack abs and the best muscles, but it's just who you are. मुझे abs नहीं है. है ना? तो when I got a good physique, उसके बाद people used to come and call me कि तू train करेगा. I used to send them to my trainer coach who was there training me back then. मैं उनके पास भेज देता था सबको. लेटर आई मेट अ फ्रेंड इन द जिम. ही सेड कि भाई तू ये कैसे करता है, तू वो कैसे करता है, एंड ही वाज ट्रेनिंग अ फ्यू अदर पीपल. ही वेंट टू यूके फॉर सम स्टडीज. वो लंदन गया कुछ पढ़ाई करने के लिए. आई मेट हिम इन द जिम ओनली. तो ही सेड आई हैव अ फ्यू क्लाइंट्स, आई वांट यू टू ट्रेन देम बिकॉज आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन हु इज केपेबल इनफ टू ट्रेन देम आफ्टर मी, बिकॉज वो लोग मेरे को छोड़ के किसी के पास नहीं, और मुझे लगता है वो तेरे पास से ट्रेनिंग ज़रूर लेंगे बिकॉज यू हैव समथिंग टू टीच देम. I started training them, and that is how I started training people. मतलब उस तरीके से मैं ट्रेनिंग में आया. And what I wanted to do in training is share my perspective towards fitness. Back in lockdown, उसके पहले मैं बैक पेन से जूझ रहा था भाई. It was a very basic 100 किलो की डेडलिफ्ट. I was not aware of the 2017-18 में किसको पता था डेडलिफ्ट कैसे करना है. लोग सिर्फ उठाते थे, बैक से पुल करते थे डेडलिफ्ट. मतलब it was nothing related to any approach or anything. It was just deadlift. और डेडलिफ्ट का कोई क्रेज भी नहीं था. डेडलिफ्ट वाज इन द क्रॉसफिट वाला जोन, मतलब वो वाला टोटली इनटू क्रॉसफिट थिंग. तो तब जब मैंने ये चीज़ करा, फिटनेस में मैंने लोगों को ट्रेन करना स्टार्ट करा, तब मैंने वो सारी चीज़ें अप्लाई करी कि मेरे को बैक पेन हुआ था. आई स्टार्टेड मोबिलिटी. राइट. आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मोबिलिटी, एवरीथिंग अबाउट मोबिलिटी. हर चीज़ मैंने मोबिलिटी की सीखी. नॉट हर चीज़ बट टू एन एक्सटेंट बहुत सारी चीज़ें जो मुझे फिक्स कर रही थी. और जब मैंने ना बाद में मैं कुछ चीज़ें फिक्स करता था ना, इट यूज टू कम फ्रॉम द इनसाइड कि दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल रोटेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ दैट. हिप की इंटरनल, हिप की एक्सटर्नल रोटेशन क्या होती है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन की वजह से स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी कैसे आ सकती है, इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कौन से सेक्शन कौन से पॉइंट्स पे. जैसे मुझे शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आई स्टार्ट टू सी विच ऑल जॉइंट्स आर इन्वॉल्व इन द शोल्डर मूवमेंट, यू नो ऑल दोज थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग द प्रेप सीजन आई वॉज ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. मैंने ये एनाबॉलिक्स को कैसे यूटिलाइज करना है खुद की प्रोग्रेस डेवलप करने के लिए. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक क्रिएटिन हो गया. क्रिएटिन इज अ वेरी बेसिक कंपाउंड, इट्स जस्ट अ बेसिक सप्लीमेंट. क्रिएटिन को आज भी लोग स्टेरॉइड कंसिडर करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. क्रिएटिन इज फार मोर सेफ देन प्रोटीन. इट्स द मोस्ट टेस्टेड सप्लीमेंट वर्ल्ड वाइड, यू कैन से गाइज. एंड क्रिएटिन के बहुत बेनिफिट्स है. लाइक आई टेल यू, एवरीबडी नोज इट. टू फ्यू पीपल और टू अ वेरी स्मॉल सेक्शन, और यू कैन से वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन स्टिल, जिसको पता नहीं क्रिएटिन कितना हेल्पफुल सप्लीमेंट है. यू कैन ऐड इट इन योर एवरी डे यूज. इट हेल्प्स. इज इट द मेजर थिंग फॉर द पीपल हु गो टू द जिम. वो सेल वॉल्यूमाइजेशन में बहुत हेल्प करता है ना, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर करने में, सेल मतलब यू कैन से मसल्स को पंप करने में. एक तरीके से बोलो, सेल वॉल्यूमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को डेप्थ में लेके जाएंगे, पर मसल्स को पंप करने में बहुत हेल्प करता है. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. इंसुलिन सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस में भी इंसुलिन सेंसिटिविटी में हेल्प करता है, इनडायरेक्टली हेल्प करता है, बट क्रिएटिन हेल्प्स. मसल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, एटीपी रिकवर करने में हेल्प. व्हाट इज एटीपी?
Adenosine triphosphate. Yeah. What is? Fuck yes. Yes, brother. Yes. Who's it? Yes, Sagar. Let's Congratulations, आप 10 करोड़ जीत चुके हो. Yes, आप sir. मुंबई आ रहे हो. मुबारक हो. तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब क्रिएटिन का एक्चुअली काम क्या होता है? क्रिएटिन फॉस्फोजेन या क्रिएटिन सिंपल रख उनके लिए. जो तुम समझो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं. जब तुम वर्कआउट करते हो तो वो डाइफॉस्फेट में आता है, मतलब एक मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है उससे. हमारा बॉडी उसको रिकवर करने के लिए जब तुम रेस्टेड फॉर्म में रहते हो तो वो 10 15 30 सेकंड 1 मिनट के रेस्ट में तुम्हारा बॉडी वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल निकालता है. वो जो स्टोर्ड क्रिएटिन होता है, जब तुम क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा मसल्स क्रिएटिन स्टोर करते हैं, तुम्हारे सेल्स क्रिएटिन स्टोर करते हैं. वो क्रिएटिन का एक मॉलिक्यूल फटाक से तुम्हारे ADP के साथ डाइफॉस्फेट के साथ बॉन्ड होता है और तुमको जल्दी रिकवरी दे देता है. तो अल्टीमेट रिकवरी में, तुम्हारी स्लीप में, मसल मेटाबॉलिज्म में क्रिएटिन बहुत हेल्प करता है. और क्रिएटिन के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जिसमें से द मोनोहाइड्रेट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन विच इज़ वाइडली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो सबसे ज़्यादा टेस्टेड है, सबसे ज़्यादा रिसर्च्ड है, इट इज़ अवेलेबल फॉर यू. एंड रिगार्डिंग क्रिएटिन देयर इज अ वेरी ट्रेंडिंग क्वेश्चन कि वो कब खाना चाहिए. प्री एंड पोस्ट क्रिएटिन खाना चाहिए. एंड कौन से टाइम पे, लाइक कौन से आई वुड से जर्नी में खाना चाहिए, ड्यूरिंग फैट लॉस और You can eat muscle creatine build or during whatever. fat loss, during muscle building, during gaining. Fat loss में it's more crucial, तुम खा सकते हो. See, if you're on a prep, then there are a lot of things that you need to work on. वहाँ पे की बात छोड़ दो, साइड में छोड़ दो. वहाँ पे A normal human being who is into bodybuilding. तुम fat loss phase में भी क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो. तुम मसल गेनिंग फेज में भी क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो. तुम जिम नहीं जाते हो तो भी मसल तुम क्रिएटिन यूज़ कर सकते हो. एंड रिलेटेड टू क्रिएटिन द बिगेस्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन द माइंड इज क्रिएटिन जब कंज्यूम करते हो तो तुमको 10-10 लीटर पानी पीना है. इट्स नॉट एट ऑल लाइक दैट. तुमको 10 लीटर पानी नहीं पीना है. एक नॉर्मल ह्यूमन 4 लीटर पानी 3-4 लीटर पानी पीता है, उतना ही तुमको पीना है तुम्हारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए. दैट्स इट. यू डोंट हैव टू कंज्यूम मोर वाटर. किडनी विडनी का भी ये होता ना लफड़ा. सिंपल वे टू लाइक ट्रैक दिस और रिमेंबर दिस, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था. कल मेरी एक क्लाइंट से भी बात हुई, तभी उनको भी मैंने यही वे में समझाया कि व्हेन यू आर पासिंग यूरिन, आपकी यूरिन जो है एकदम लाइट येलो या फिर वाइट निकलनी चाहिए. दैट मीन्स कि यू आर वेल हाइड्रेटेड. इफ आपकी वो लाइट येलो से ज़्यादा डार्क येलो में निकल रही है, दैट मीन्स कि इट्स तुम्हारा गेम बच It's चुका your है. body's signal. Body is giving you signals. the whole point that we are trying to tell over here is to try to understand how your body works. Related to kidney, I'll tell you. अगर तुम्हें किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रिएटिनाइन लेवल्स क्यों चेक करते हैं हम लोग? योर किडनीज कैपेबिलिटी टू यूटिलाइज क्रिएटिन, है ना, उसको पास आउट करना, उसको यूटिलाइज करना. तो अगर किडनी की प्रॉब्लम है पहले से, तो तुम क्रिएटिन मत लो या बहुत कम लो. हाँ, what is the dosage for a regular human being? 3 grams. 3 to 5 grams. Yeah. और you can go up to 10 to 20. 10 grams तक तुम जा सकते हो आराम से क्रिएटिन में. इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तुम क्रिएटिन को फेजेस में ले सकते हो. जैसे तुम लोडिंग फेज और मेंटेनेंस फेज बना सकते हो. इनिशियली 6 दिन अगर तुमने पहली बार क्रिएटिन लिया है, बहुत टाइम के बाद ले रहे हो. 2 ways to start your creatine. एक तो रहता है कि रोज़ खाओ, लाइक 1 महीने के लिए 3 ग्राम एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वो लोड हो जाएगा. एंड फिर दूसरा आता है कि यू हैव टू डोसेज लाइक इन अ वीक, 4 बार वीक में 2 घंटे. There's a loading phase where you load creatine Yeah. for a week, जिसमें तुम 3 दिन 20 ग्राम लेते हो, 3 दिन 15 ग्राम लेते हो, 3 दिन 10 ग्राम लेते हो, या ऐसे कुछ 7 दिन का फेज भी बना सकते हो तुम. आफ्टर दैट लोडिंग फेज यू गो इनटू द मेंटेनेंस फेज. दैट इज 3 to 10 ग्राम्स तुम लोगे उसके बाद, प्री एंड पोस्ट. द बेस्ट वे टू टेक क्रिएटिन इज विद एनी कार्ब सप्लीमेंट या कार्ब ड्रिंक या हाई ग्लाइसेमिक फूड. कोई भी शुगरी फूड के साथ लोगे तो, जिसको बोलते हैं हम लोग द GLUT4, what do you call GLUT4? Gluten. ग्लूकोज टाइप फैक्टर 4 कार्ब्स जिसको बोलते हैं हम लोग. Like बहुत ज़्यादा easily digestible वैसा. The GLUT type 4 is a protein which is responsible to carry glycogens into your muscle cells या fat cells में store करने. Basically sugar. या basically sugar. GLUT type 4. See, I feel ये like since ये topic निकला है, like people fear of sugar. And लोग बोलते हैं कि मीठा मत खाओ and ये मत खाओ. If you learn to use it in a proper way, like actually you can take benefits from it. Unless and until you are that person जो रात को 2 बजे उठ के मीठा खा रहा है because यहाँ से वो stressed है. और मीठा मतलब see, I'll tell you what is मीठा. मीठा is directly something that is going to spike your glycogens. Exactly. या इंसुलिन स्पाइक करने में डायरेक्टली चला जाता है. दैट इज द फटाक से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्ब्स, है ना. अब दूसरी चीज़ आती है तुम्हारा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से राइस हो गई, Yeah.
या कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ब्राउन राइस हो गया. अब वाइट राइस और ब्राउन राइस का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? वन इज अ सिंपल कार्ब, वन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्ब. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स तुम्हारे इंसुलिन स्पाइक करने में इंसुलिन स्पाइक नहीं करता और थ्रू आउट द डे तुम्हारी एनर्जी सप्लाई धीरे धीरे तुमको देगा. सिंपल कार्ब्स क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स तुम कंज्यूम करते हो, तुम्हारे बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में ही, शुगर में ही ब्रेक डाउन होगा अल्टीमेटली वो. तो इट्स अल्टीमेटली sugar. The carbs form is going to be sugar. It's the energy thing only. Carbohydrates. Guys, everything that you eat, it is being like broken down in the form of glucose at the end of the day. What about protein? Nice question. Protein, when you eat like excessive protein, that is also like it gets stored Protein in the is form of broken fat. down into amino acids Yes. into your body. जितना जरूरी है उतना yes वो तुम्हारे मसल्स में जाता है, बाकी का वो भी फैट के फॉर्म में ही जाता Going to get utilized Yes. in the body, right? अभी हाँ, coming back to the topic. अब ये था क्रिएटिन रिलेटेड चीज़ें. इफ़ यू गाइज आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड तो क्रिएटिन इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू. मतलब तुमको नॉन वेज फूड से क्रिएटिन मिल जाता है, स्पेशली इन रेड मीट्स. पर रेड मीट के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं, बट देन रेड मीट इज ऑल्सो गुड टू ऐड इन योर वर्कआउट इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन. इफ यू डोंट वांट टू ऐड इट, इट्स गुड. तुम नहीं ऐड कर रहे हो. फिश एंड चिकन ब्रेस्ट इज द बेस्ट थिंग. चिकन ब्रेस्ट सबसे हाई प्रोटीन चीज़ है. आई फील इसके ऊपर पूरा एक पॉडकास्ट होना चाहिए यार. yes. आप लोग आप सबको हम तुम लोग को सब कुछ डिटेल में बताएंगे कैसा क्या. तो क्रिएटिन वाज वन एसेंशियल थिंग जिसके बारे में मुझे एक्चुअली बात जस्ट 1% इसको छोड़ के ना मुझे एक बहुत बड़े डिबेटेबल टॉपिक है भाई, BCAA. हाँ, let's go. और उसके साथ प्लीज जुम्बा ऐड मेरे को किसको ऐड करूं? जुम्बा. Oh fuck yes, Zumba. Okay, first thing is I want to talk about, like, these are the two things that I want to talk about. One is BCAA. People say BCAA एक useless चीज़ है. I want to ask क्यों? और अगर वो useless है तो उसके बदले क्या कंज्यूम करना चाहिए? उसके ऊपर निकला बाद में बोलेंगे भाई, अभी कुछ मत. तो BCAA इज स्पेसिफिकली नॉट यूजलेस. अगर तुम्हारा दिन का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो रहा है, तुम BCAA ले रहे हो तो इट्स यूजलेस. यस. कोई भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी लेना फिर तो यूजलेस होगा. अगर तुक नहीं बनता फिर उसका कुछ भी. अगर तुम्हारा डेली प्रोटीन इंटेक फुलफिल हो रहा हो है, गया. इफ़ यू आर कंसिडरिंग इंट्रा वर्कआउट, इफ़ यू आर अ बॉडी बिल्डर जिसका प्रोटीन इंटेक तो फुलफिल हो रहा है, पर तुमको क्विक एनर्जी रिकवरी चाहिए, तुमको क्विक एनर्जी रिकवरी चाहिए, तो BCAA इज यूजफुल. उसमें ल्यूसिन इज द मोस्ट यूजफुल थिंग बिकॉज इट्स द ब्रांच इन अमाइनो एसिड में. ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ये 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं. इट्स लाइक कि सिर दर्द नहीं है एंड फिर भी सिर दर्द की गोली खानी है. Yeah, but when you're on a cut, a critical cut where you're on like 40-50 grams of carbohydrates, Yeah. तब BCAA plays a good role. But उसको It plays a crucial role. crucial role. But unless या until EAA comes into picture, भाई वो तो essential amino acids. These are the 9 essential amino acids जो एक प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं. प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं. I'm talking about 9 essential amino acids. If you talk about protein, then protein kinase भी होता है. वो फिर एंजाइम्स हो गए. 20 से भी ज़्यादा होते हैं. फिर प्रोटीन काइनेस को भी कंसिडर कर सकता है तो यस. फिर प्रोटीन काइनेस में जा रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ना. दीस आर 9 एसेंशियल अमाइनो मोस्ट एसिड्स इंपॉर्टेंट वंस जो प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं. ठीक है. अब ये 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड से EAA बनता है. ठीक है. तो इफ इंस्टेड ऑफ BCAA, इफ यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कंज्यूमिंग EAA और BCAA, तो तुम BCAA क्यों कंज्यूम कर रहे हो? तुम EAA कंज्यूम कर सकते हो. तो दैट्स हाउ इट इज. एंड इफ यू डोंट वांट टू कंज्यूम EAA, तो BCAA इज गुड बिकॉज तुम्हारा दिन का प्रोटीन तो वैसे भी निकल रहा है. तुम सिर्फ 2-3 एसेंशियल अमाइनो एसिड से रिकवरी चाहते हो, द रिकवरी एस्पेक्ट. बट इवन EAA हैज बीन प्रूवन कि EAA BCAA से ज़्यादा रिकवरी देता है. दैट इज द रीजन BCAA इज ट्रैश. तो ये एक चीज़ है. नेक्स्ट थिंग इज भाई, आई डोंट नो व्हाई आई हेट दिस थिंग. लाइक देयर आर अ फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन, दे हैव जुम्बा इंस्टीट्यूट्स. ए तू जुम्बा पे कुछ नहीं बोलेगा आई माइट आज, कुछ नहीं बोलेगा भाई. आई माइट हर्ट देम. बट अगर ये शायद इसकी अगर एक रील बनी जुम्बा के ऊपर, तो आई वॉन्ट यू टू जस्टिफाई हाउ जुम्बा हेल्प्स इन फिटनेस. एंड इफ समबडी इज डूइंग जुम्बा, तो उसके बदले वो डांस क्यों ना करे? डांस इज एन एडिशनल स्किल. यू आर मूविंग योर बॉडी. इंस्टेड ऑफ डूइंग अगली स्टेप्स, यू आर लर्निंग गुड स्टेप्स एंड यू डूइंग समथिंग गुड. इंस्टेड ऑफ स्टेइंग देयर ऑन जस्ट अ रिदम, एक रिदम पे तुम 4 स्टेप करोगे, उससे बेटर तुम कुछ अच्छा सीखते हो. एंड व्हाई आर यू फकिंग वेस्टिंग योर मनी एंड योर लाइफ इन डूइंग अ एक्टिविटी व्हिच इज यूजलेस. जस्ट fucking useless. Go learn dance, go learn some what do you call it, some or the other dance style. और वो कर लो भाई. Why are you doing this useless fucking shit? But नाम भी कितना गंदा है, जुम्बा. उसके लिए साला इंस्ट्रक्शन के लिए, उसको सिखाने के लिए सर्टिफिकेशन क्यों लगता है?
And then after BCAA and Zumba, we'll be coming on Animal Flow. Oh fuck yes. भाई हम लोग I think एक-एक करके see I topic think लेंगे। animal flow see gymnastics से calisthenics निकला ठीक है gymnastics से calisthenics निकला Yeah. calisthenics to an extent it's far more popular recognized and accepted And अच्छा भी है। and accepted animal flow ये चीज निकली इन्होंने बहुत लिमिटेड स्टेप्स बनाए मतलब करके पीछे जाए, एक पैर उठा के डाला स्कॉर्पियन करते चलो स्कॉर्पियन दे डू स्कॉर्पियन they do scorpion they do frogs they do bears and they do whatever they want बट ये 4-5 मूवमेंट्स में वो चीज़ खत्म हो गई ये आगे बढ़ी नहीं उनके कोर्सेज बने लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 पता नहीं लेवल 3 तक क्या सिखाएंगे लेवल 1 में मैं लेवल 3 कंप्लीट कर दूं भाई बट क्यों I want to ask वही सवाल है। animal flow क्यों doesn't even look like animal flow Leo moves Leo urban Leo.urban करके एक पेज है उस बंदे का खुद का वो ईडो पोर्टल वाला क्या? नहीं Edo portal is something else अच्छा Edo portal is movement हाँ राइट नहीं तो उसका Leo.urban करके पेज है look at his page and look at what he does वो Amazon forest में पूरा एनिमल फ्लो प्रैक्टिस करता है नॉट एनिमल फ्लो ही मिमिक्स द एनिमल्स ही लिव्स द प्रिमिटिव लाइफ एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़ी मारता टार्जन थिंग है एवरीथिंग एंड लुक एट हिज गोरिल्ला वाला स्टेप्स जो वो करता है द होल स्कैपुला थिंग मूव्स और ये चीज़ अगर तुम ये चीज़ यहाँ पे सिखा रहे हो अच्छे से तो सिखाओ अडल्ट्रेट क्यों कर रहे हो कमर्शलाइज क्यों कर रहे हो इट्स द होल फकिंग कमर्शलाइज थिंग द एनिमल फ्लो इज द मोस्ट कमर्शलाइज थिंग इसको छोड़ के लियो मूव्स करके एक पेज है इफ यू गाइज आर इनटू मूवमेंट एंड इफ यू वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स लियो अर्बन लियो मूव्स ये पेज है लियो मूव्स टीचेस ब्रेकलेटिक्स अच्छा अब ब्रेकलेटिक्स डिडंट गेट दैट रिकग्निशन बट आई थिंक ब्रेकलेटिक्स इज अ फॉर्म जो फंक्शनल फिटनेस में तुम डाल सकते हो जैसे ब्रेक डांसिंग और एथलेटिक का मिक्सचर ब्रेकलेटिक्स अच्छा तो दे टीच यू स्टेप्स एंड गाइड्स एंड यू नो ग्राउंड मूव्स तुमको सिखाएगा एनिमल फ्लो और ब्रेकलेटिक्स को कंपेयर कर लेना गाइज एंड जस्ट टेल मी कि क्या चीज़ बेटर है बेसिक से बेसिक चीज़ और बहुत एडवांस तक चीज़ें ब्रेकलेटिक्स में बहुत सारी हैं जो तुम कर सकते हो तो दिस Animal flow- animal flow- all the animal flow lovers is it like anyone who is like who doesn't know about the animal flow what do you mean to say is like a show off kind of thing is it like that it's a commercial shit that it didn't मतलब it was a commercial इसको बनाया गया है cult basically which started in terms of fitness हाँ that's all but it did not get that recognition because it was not clear about what it wanted to do animal flow ठीक है but animal flow is so complex you can't teach the very average people See what you what can't is teach the happen- age old वो generation क्या है पता है क्या कुणाल कि बेसिक्स ऑफ बीइंग हेल्दी और बिहाइंड अ स्पोर्ट वो आज भी वही है लोग क्या कर रहे हैं पता है क्या विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया जैसे जो अनरिकग्नाइज्ड चीज जो थी लाइक 10 साल से 20 साल से वो आगे आती है लोग क्या करते हैं पता है क्या अभी आधे से ज्यादा चीजें लोगों को पता है कि भाई हाँ ये एग्जिस्ट नहीं करती थी या जा रही है पीपल जिनको कुछ आता नहीं है मैं एनिमल फ्लो की बात नहीं कर रहा बट जिनको कुछ आता नहीं है वो लोग कुछ नया भसड़ बना देते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि देखो गाइस ये भी कुछ नया है और देयर आर पीपल जिनको कुछ नया सीखना रहता है बिकॉज उनको कुछ इनिशियली आता नहीं है बेसिकली दो चूतिया साथ में आते हैं कुछ नया इन्वेंट हो जाता है और उसका धंधा खुल जाता है हाँ it's a so धंधा it's not just do chutiye it becomes like a cult like Cult, exactly. the thing like animal flow and everything it started like a cult but that cult was not हो नहीं पाया है it didn't go well ठीक है बिकॉज वजन तो रहना चाहिए ना भाई वो चीज में ये क्रॉसफिट वाले आई हैव अ वेरी लेम क्वेश्चन बट लेम नहीं है भाई ये क्रॉसफिट वाले गाली क्यों खाते हैं इतना नाउ यू गाइस कम फ्रॉम यू प्रवीण इज बीन इनटू कैलिस्थेनिक्स एज वेल बाकी सारी चीज़ें डांस भी करता था ये और ही इज इनटू बॉडी बिल्डिंग नाउ CrossFit वाले गाली खाते हैं I don't know CrossFit वाले गाली खाते गाली खाते हैं भाई ऑन अ जनरल मतलब यूजुअली सब क्रॉसफिट वाले गाली खाते हैं I recently saw a joke See, when you are in your mid 40s CrossFit at a level जो प्रोफेशनल्स करते हैं वो नहीं बोल रहा मतलब रेगुलर जिम में अभी now it's a thing ना now first I want to come up with a question what is CrossFit can you answer it नहीं I can't what is CrossFit it how did CrossFit start to be very honest like for a person like me I did not like lifting weights when I started the physical whatever bullshit journey तो मेरे को लिफ्ट वो वेट बिकॉज वो इतना जिम में जाके ना सब हैंचुर बड़े बड़े वजन उठा रहे तो मैं बोला ये बिगनर वाला करने का मेरे को रेंज नहीं होता ना मैं बोला ठीक है ये कूदना वूदना मस्त है ये टाइम पास करो ये करो so CrossFit is basically a mixture of random movements where you make a set of it and you challenge yourself Got it. to a different intensity इट्स लाइक वो बहुत ज्यादा डायनामिक होता है yes like you can do squats
and deadlifts, one after the other. हम्म, But अब वहाँ पे the sets are like arm wraps, हाँ हाँ EMOMs, हाँ फिर reps, और एक वो सर्किट वाला भी होता है उनका कि RFT sets बोलते हैं. उन लोग के लिए ड्रॉप सेट, सुपर सेट, ये सब कुछ ये नहीं सब रहता। कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं वो बेसिकली बहुत ज्यादा लाइक एडवांस और जानवर लोग रहते हैं। तो सो एक्चुअली लाइक रिस्पेक्ट है उन लोगों के लिए। नहीं मैं बीच में CrossFit is not easy. मीम कल्चर में बहुत गाली खाते CrossFit, हैं. if you're putting backflips and everything, now that it's getting that negative hype is because of the people who are trying to make it cringe. वो अगर उसको sport को authentic रखो, like if you learn the clean and press, rope climbs, battle ropes and skipping and all those things, it's the authentic अभी CrossFit एक side. साल के अंदर तू देखने जाएगा तो वो स्ट्रॉन्गमैन वाला जो एरिया है वो भी थोड़ा थोड़ा लाइक ऊपर आ रहा है after हाँ अभी powerlifting. हाँ ऑब्वियसली पावर लिफ्टिंग तो It's coming up, but from the audience perspective, from the audience side, not from the lifters side, you can say. मतलब उस sport को recognition मिल रही है देखने के लिए. True. पार्टिसिपेशन के साइड से तुम बोलोगे फिर भी बहुत Participation कम के है लिए तो बिकॉज जो easy है इट्स भाई वेरी वही करेगा ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो. या इट्स वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. पावर लिफ्टिंग ईजी है मतलब तो बोलना चाहता है. हाँ obviously. Definitely. And everybody who's starting their fitness journey, they can start with powerlifting. It should be the first start because ये तुम्हारी foundational movements को strong बनाता है. And you don't need to be a power lifter to start power. You don't have to be competitive enough or competitive to start powerlifting. If you want to grow in fitness, if you want to be injury free in the future, Yeah. you should start with powerlifting because that is where you learn the foundational movement, that is squat, bench press, deadlift and overhead press. यहाँ से तुम कंट्रोल सीखते हो, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, कोर स्ट्रेंथ डेवलप करते हो और उसके बाद जब तुम आइसोलेशन और कंट्रोल मूवमेंट्स के ऊपर आते हो ना तो तुम बहुत अच्छा कर लेते हो. हाँ तो सम अप विद दिस, इट्स ऐसे चीज़ें अच्छा है यार. पहुंचे है. हाँ, अच्छा है ये सब अच्छा है मतलब पावर लिफ्टिंग करना चाहिए. मेरे को लग रहा था पावर मेरे को I don't like powerlifting. ट्रांसफॉर्म कर रहे थे. मेरे को हेटर है पावर See, I don't like powerlifting is because it's very monotonous for me. For people, see, जिसको powerlifting नहीं करना है, जिसको powerlifting नहीं करना है, he is not a powerlifter. Why is he getting offended by? मैं ऑफेंड हुआ ही नहीं. ये offend होता है साला. He's a powerlifter. That means he's a powerlifter. अरे आई एम नॉट अ I don't like powerlifting specifically to practice. I have a client who is into powerlifting. Like he's also like a brother to me now. He's a 15-year-old kid. He's deadlifting like 190 kgs. ऐसे ही casually अभी आता है और कृष्णा. no नहीं Shubham. not शुभम शुभम. 15 साल का Christian है. into bodybuilding. I'm just building a good physique. मैं हमेशा कंफ्यूज. शुभम is like 60 kgs body weight पे है. एक साल पहले lifting start करा. Within a year he got 130 kg का squat, 65 kg की bench और 180 का 190 की dead अभी हमने मारी जो. मारी गया. वो competition में जाके हक देता है. Definitely every player who's just starting it, he's going to fuck up in their first few competitions, but you have to be patient and listen enough to not do all those things in the Good kid. future. At the end of the day what matters is कि आप क्यों कर रहे हो. माचो बनने के लिए कोई भी चीज मत करो. See, it's not about आप क्यों कर रहे हो. It's an essential thing that you should not even think about क्यों कर रहे हो. आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, सोचते हो क्यों कर रहे हो. नहीं बट इट्स लाइक कि मैंने देखा है लोगों को कि भाई कैसा रहता है पता है क्या कि मैं जिम में जब जाता हूँ तो द वे दे कम एंड आस्क कि जैसे प्रवीण ब्रो तेरी बेंच क्या थी एंड व्हेन यू से कि 140 for 2 एंड उसको तुझे आके पूछेंगे कि ऑन या ऑफ तो इसलिए कि वो अगर तू बोलेगा कि नहीं ऑन और फिर वो बोलेगा कि नहीं मेरी तो 150 की है बेंच. मेरी तो अब 100 की है पर मैं कुछ भी नहीं लेता. हाँ मैं कुछ भी नहीं लेता तो दैट इज लाइक थोड़ा सा दिखता है. He's asking it to satisfy his ego. That's it. He's just asking for comparison, not asking for knowing how capable you are. He's just asking for a competition side. Got it. तो एट द एंड ऑफ द डे वो वहीं पे आ रहा है तो वो गलत है. Got it. Fuck. Yeah. There's a It's been 1 hour 40 minutes, I guess. there's a I think if we go on we'll go on. लंबा बहुत मतलब बात करने के लिए कमी नहीं है. I hope this was enough about me, I guess. हाँ नहीं there's still a lot. Yeah. Still a आप the recent वाला जितना लोगों को पता रहना चाहिए आई गेस. the recent वाला thing we talked about, the whole Instagram thing blowing up, and I hope it keeps blowing up and it will. वो होगा obviously. हाँ it will. जो लोग नए आए हैं be around, be there and watch out. Yeah.